I would like to call upon that person. He's already here, not just on time, he's actually with us before time, and that's the hallmark of a professional person who is a very successful person also. He is not only doing what he's saying, he's also inspiring people to do that. So I'd like to give a little brief about this person, that at the age of 9, what's the age? What's the age? 9. So at the age of 9, he started doing training programs. And people at the age of 50s, 60s find it difficult to come on stage and say a sentence. तो उन्होंने 9 साल के उम्र में लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, इंस्पायर करना स्टार्ट किया. At the age of 12, he was a certified Microsoft professional, and now he's still he's very young, and he's in his 30s, and he has inspired lakhs of people, not just in India but across the world, and he personally has traveled to almost 25 different countries of the world. And I believe, and with my little experience, there is no better teacher than traveling. जब आप travel करते हो अपने शहर से, अपने देश से दूसरे जगह पे जाते हो, the kind of experience that you have, the kind of life experience that you have, that's the greatest teacher. Just imagine the perspective of a person who has traveled to 25 different countries, seen the culture, seen different, way of living, the way people live. And he's been training his signature program called Change Your Life. What's the name? Change your life. So you all want to change your life? Yes. And you want to change your personal and professional life as well? Yes. Yes or no? Yes. So here is someone who has inspired lakhs of people, as I told you, and he's been called the magician of words. Shabdon ke jadugar hai. A lot of mainstream media has recognized his work. His institute has been recognized as one of the premier training institute in India, and he also has been recognized as the top 25 young entrepreneur in the state of Gujarat. So I can go on, his credentials so much, and I'm sure you'll also talk about his own experience and story in this session. So with a big round of applause and with a standing ovation, I'd like to now introduce the motivational speaker of India, very inspiring person, Mr. Sneh Desai. Joran khade ho jaye. Let's give a big round of applause. Come on, bigger. Thank you so much, guys. Good morning. Good morning. Couple of questions to start with. आप में से कितने लोग super successful होना चाहते हैं? Raise your hand. Wow, that's great. और कितने लोग super successful, super fast होना चाहते हैं? Everyone, right? And that's what we are here today for. अगर आप सही में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सुपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं और बहुत जल्दी होना चाहते हैं, तो आज के सेशन में इनकमिंग 90 minutes, that's what we're going to talk about. Guys, it's an honor to be on this stage. Velocity Booster. I've been connected to Velocity long back. Stan के साथ कहीं ना कहीं एक लंबा connection मेरा रहा है, and I'm happy to say कि अब ये Velocity Booster बन गया है. So it's an honor to be on this stage. But equally, it's a bigger challenge. Bigger challenge in terms of my shortest seminars are of 10 hours. और आज मुझे 90 मिनट मिले थे, जिसमें से आधा घंटा आप खा गए. But I'm gonna cover it up. मैं और 90 मिनट तक कंटिन्यू करने वाला हूँ. Guys, before I start sharing all the insights and strategies and tools with you, मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. Because see, to be honest with you, अगर कोई कह दे कि इस आदमी पर भरोसा कर दो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. You should know about him. Why you should trust me? क्यों मेरे insights को आपको follow करना चाहिए? क्यों मेरी strategies को follow करना चाहिए? जैसे स्टैन ने आपके साथ शेयर किया, I started pretty young. I was just like 9 years old जब मैं स्टेज पर पहली बार आया था. Because तब तक, just 4 साल की उम्र पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिटेशन सिखाया. 7 साल की उम्र पे सबकॉन्शियस माइंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना शुरू किया. And just at the age of 9, I started, coaching people, motivating people from stage. और जब तक मैं 12 साल का हुआ, I passed out Microsoft certification. In the whole world, I was the youngest to pass Microsoft certification at the age of 12. Now, is it better? ठीक है. So, जब मैंने ये अपनी जर्नी आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर करी,
आप सोच रहे होंगे that I had got a great life and that's true, you know, I was born with a silver spoon, I would say, कि जब एक 10 रूम का घर, गाड़ी, ड्राइवर, उन दिनों में ये सारी फैसिलिटीज होना उतना आम नहीं था and I had all the comforts in my life. But when I turned 15, जब मैं 15 साल का हुआ, तब मेरे फादर का फैक्ट्री बंद हुआ. It happened so कि जब उनका फैक्ट्री बंद हुआ, जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिल रहा था वो अटक गया and there was a big downfall in our family's life, in our financial life. अब हुआ कुछ ऐसा कि इस सिचुएशन में जिस घर में मुझे बड़ा किया गया था, वो 10 रूम वाला घर, वो हमें बेच देना पड़ा और हम चले गए एक किराए के मकान में, रेंटेड हाउस में रहने के लिए. नाउ गेस व्हाट, जब आप पैदा होते हैं गरीब परिवार में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप गरीब हैं. मगर जब आप अचानक से गरीब हो जाते हैं, जो मैं नया गरीब बना था, so it's difficult to accept and adapt to that lifestyle. और मेरे लिए वो चैलेंजिंग बन गया बिकॉज एट द एज ऑफ 15 जब हम किराए के घर में मूव किए, सारे लग्जरीज कंफर्ट्स चले गए मेरी लाइफ से, तो 15 से 17 की मेरी जो एज थी, 3 साल मैंने और मेरे परिवार ने खुद के घर के बिना बिताए. बट एट द एज ऑफ 17 मैंने फिनिश माई स्कूलिंग. अब कॉलेज में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था. माय फैमिली डिड नॉट हैव फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेंड मी टू कॉलेज एंड अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे. या तो मैं पूरी जिंदगी वेट कर सकता था कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई बड़ा बदलाव आ जाए, और या फिर आई कुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय लाइफ. व्हाट डू यू थिंक, क्या चूज करना चाहिए? वेट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और वही मैंने किया. तभी जाकर मैं आपके सामने खड़ा हूं. सो आई डिसाइडेड कि मैं एक सिंपल से रूल को फॉलो करूंगा अपनी लाइफ में, दैट वुड बी नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स. नाउ व्हाट डज दैट मीन इज कि अपनी जिंदगी में एक ऐसा लेवल डिसाइड कर लो कि उस लेवल के नीचे आप अपनी जिंदगी कभी नहीं जिएंगे. एंड दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड, नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड. ऑलराइट, सो नाउ यू गाइस आर सपोज्ड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग माय सेशन. मैं आपको बहुत सारी चीजें करवाने वाला हूं. आई डू बिलीव आप सभी के पास नोट्स बनाने के लिए कुछ ना कुछ होगा. Alright, so guys, अगर सेल फोन भी है, no problem, you can make some notes on that. और साथ ही साथ मैं आपको एक दूसरे के साथ लेफ्ट और राइट में भी कुछ एक्सरसाइजेस करवाने वाला हूँ. ओके, एंड हम जानते हैं कि we have some constraint when it comes to social distancing, alright. और मैं बीच में कहीं ना कहीं आपको हाई फाई देने के लिए कहूँगा, कहीं को शेयर करने के लिए कहूँगा, but I believe you guys have enough sanitizers, right? Alright, so ये जो नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये वर्ड जब मैंने अपनी डिक्शनरी में बिठा दिया कि दैट्स व्हाट आई वांट टू लिव माय लाइफ, तो मेरा सबसे पहला डिसीजन ये था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है. अभी हम किराए के घर में हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है. इन रिटर्न मैं उनको वैसा दूसरा 10 रूम का घर बनाकर दूंगा. That's what I decided as a goal, as a purpose in my life. Thank you. And guess what? When I started at the age of 17, मेरे पिता ने मुझे 22 लाख रुपए का कर्जा दिया था, क्योंकि वो कर्जा उनके ऊपर था. I took the responsibility of that. और उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 50 या 60 लाख के बराबर हो सकता है. And when I started my career, I started my first business सिर्फ 2 साल के अंदर. When I turned 19, सिर्फ 2 साल के अंदर मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया. And that was I bought first Mercedes at the age of 19. मैं वो सारे कर्जे को दूर कर पाया, अपने फैमिली को उस परिस्थिति से बाहर लेकर आया. I achieved one of my goals जो कभी मेरे लिए बहुत बड़ा था. And at the age of 17 I had decided not just one. At the age of 17 when I started my career, I had set 101 goals. How many? Okay, एक काम करो, अपने लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे उनको कहो 101 goals. Come on guys. Oh yes. Now this is where you have started learning, because see, अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है. कुछ चीजें जब आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपका माइंड रजिस्टर करेगा. ओके, सो दैट्स वेयर मैं कुछ चीजें बुलवाऊंगा, लिखवाऊंगा. ओके, सो 101 गोल्स मैंने सेट किए थे, जिसमें से मैंने एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया था एट द एज ऑफ 19. बट एज आई वेंट ऑन, काफी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इसने हाउ वाज इट पॉसिबल इतनी यंग एज पर. बट द मैजिक फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, एंड द फॉर्मूला वाज नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड जो मैंने आपको कहा. बट मैंने उससे इंप्लीमेंट करने के लिए एक सिंपल से रूल को फॉलो किया. टिल द एज ऑफ 17 मैं अपने दोस्तों के साथ कभी घूम रहा था, कभी टीवी देख रहा था, कभी फिल्में देख रहा था, कभी अगर इंडिया क्रिकेट खेल रहा है तो मैं सब कुछ काम धंधा बंद करके उनके सामने बैठ जाता था, क्योंकि इंडिया क्रिकेट खेल रहा है. बट व्हेन आई वांटेड टू मूव फॉरवर्ड इन माय लाइफ, तो मैंने एक सवाल अपने आप से पूछा कि मुझे क्या है
जो प्रोडक्टिविटी की ओर लेकर जा रहे हैं, मुझे क्या है जो ग्रोथ की ओर लेकर जा रहे हैं। और जब मैंने रियलाइज किया कि वो दोस्त मुझे ग्रोथ की ओर लेकर नहीं जा रहे, जब मैंने रियलाइज किया दैट अगर इंडिया क्रिकेट खेल रहा है वो मुझे प्रोडक्टिविटी की ओर लेकर नहीं जा रहा है, सो आई स्टॉप्ड वाचिंग ऑल दैट शिट। मैंने टीवी बंद कर दिया, मैंने वो फालतू मूवीज देखना बंद कर दिया, इंडिया के क्रिकेट मैचेस को देखना बंद कर दिया। ओके, आई वाज श्योरली प्राउड इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता, बट उसका मतलब ये नहीं था कि मैं काम धंधा छोड़ करके उनके सामने बैठ जाऊं बिकॉज वो लोग खेल रहे हैं, राइट। सो What happened was कि मैंने अपने हर एक दिन और हर एक मिनट को लगा दिया था अपने गोल्स के ऊपर, and that's what resulted buying a More at the age of 19 and the journey went on because उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी के वो सारे सपने पूरे किए, चाहे वो Mercedes हो सकता है, BMW हो सकता है, this is my present pictures like Land Rover या जो भी मेरे सपने थे, या जो मैंने 10 रूम का घर का सपना देखा था, this is 1 lakh square feet right now जहाँ पर मैं रहता हूँ, this is kind of a 40 रूम का घर है ये, it has got a cricket ground, swimming pool, basketball arena, badminton court, squash room, studio, या फिर इसी के अंदर मेरा पर्सनल जिम है, दिस इज माय पर्सनल जिम, इट्स अ 1500 स्क्वायर फीट प्लेस, 15 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं। या फिर जस्ट एट द एज ऑफ 23 साल की उम्र पर दैनिक भास्कर ने, जो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने मेरा नाम चुना गुजरात के टॉप 25 यंग बिजनेसमैन के रूप में, बिकॉज टिल द एज ऑफ 23 आई वाज रनिंग 6 डिफरेंट बिजनेसेस एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपनी पहली किताब 18 साल की उम्र पे लिखी थी और उसे इनॉग्रेट करने के लिए अरशद वारसी आए हुए थे, एंड ही वाज वेरी फेमस इन दोस डेज बैक जब मुन्ना भाई MBBS रिलीज हुआ था, उसके बाद ये लॉन्च हुआ एंड अरशद केम इन एंड वन ऑफ माय बेस्ट सेलर्स इज चेंज योर लाइफ व्हिच इज अवेलेबल ऑन Amazon राइट नाउ। या फिर आई रिमेंबर जब मेरी जर्नी के दौरान आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कोच मोर देन 100 कॉर्पोरेट्स आई वुड से इन इंडिया, जिसमें आपने बैंकिंग में सबसे बड़ा नाम SBI का सुना होगा, या ऑयल कंपनीज में इंडियन ऑयल, या मनी ट्रांसफर में वेस्टर्न यूनियन, या इंश्योरेंस में LIC, ये सारे मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं। इवन फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आपने जिनका नाम सुना है, जो दुनिया की पहली 500 कंपनी है उसमें एक नाम है डंकिन डोनट्स। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि उन्होंने 2015 में मुझे US इनवाइट किया एंड आई वाज द फर्स्ट इंडियन to coach a Fortune 500 company in United States. So it was a big honor for me also. And along my journey I got the opportunity to meet a lot of celebrities, to coach a lot of people जिनको आप जानते हैं, चाहे वो अजय देवगन हो सकते हैं या विवेक ओबरॉय हो सकते हैं, या काफ़ी अच्छे नाम, and few of them gave me the privilege in terms of कि उन्होंने मेरे बुक्स को इनॉग्रेट किया। बट ये जर्नी अगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड, आई एम गोना कम टू दैट रीजन कि मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको। आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एट द एज ऑफ 9, तब से लेकर अभी तक इंडिया के 26 से ज्यादा शहरों में रेगुलर बेसिस पर मेरे इवेंट्स, सेमिनार, वर्कशॉप्स हो चुके हैं। इंटरनेशनली 7 कंट्रीज तक मेरे सेशंस जा चुके हैं। या फिर लाइव ऑडियंस, मुझे अभी तक 24 लाख से ज्यादा लाइव ऑडियंस मिल चुका है फिजिकली। I'm not talking about online, I'm not talking about YouTube videos, I'm not talking about digital, जो पिछले 1 साल में बढ़ गया है। I'm talking about live audience, okay? So I'm really happy, Stan, जब आपने मुझे opportunity दी, I'm really happy in terms of कि काफी बरसों के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मैं physically live stage पर आया हूँ and इतने अच्छे audience के सामने खड़ा हूँ, right? So it's a different feeling altogether, okay? Because पिछले 1 साल से constantly वही digital studio webinars वही चल रहा था, and I'm happy to be here. So guys, इस journey को मैंने अब इस साल मैं 25 साल पूरे करूंगा, because I came up on stage at the age of 9. अभी इस साल मैं 34 का हो जाऊंगा, so अब 25 साल होंगे स्टेज पर। Yeah, I'm gonna celebrate silver jubilee in a way. और मैं खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग के फील्ड में इसलिए मुझे भारत निर्माण का अवार्ड मिला इन टर्म्स ऑफ कोचिंग सो मेनी पीपल। और अभी बस 1 महीने पहले की बात है जब इकोनॉमिक टाइम्स ने मेरा नाम चुना इन टर्म्स ऑफ डिजिटल लाइफ कोच, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत सारे मोटिवेटर्स थे, बट व्हेन द लॉकडाउन केम इन, व्हाट आई डिड वाज आई डिड नॉट सिट बैक कि भी बैठे रहो, वेट करो कि वैक्सीनेशन कब आएगा और कोरोना कब जाएगा। आई डिड समथिंग डिफरेंट। मैंने कुछ ऐसा सेटअप किया अपने स्टूडियो में कि जहां पर एक साथ मैं 400 से 500 पार्टिसिपेंट्स को देख सकूं। आई क्रिएटेड द बिगेस्ट स्टूडियो इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन हाउस एंड आई स्टार्टेड टेकिंग डिजिटल कोचिंग, बिकॉज वेट मत करो, राह मत देखो, राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलेगा, चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई फर्मली बिलीव एंड दैट्स वेयर
I created this studio और इसीलिए the Economic Times highlighted this point और digital coach के रूप में मुझे award किया. But then guys, मैं आपके साथ ये सब इसलिए बस share कर रहा था because do you think is it worth कि आप सुबह जो जल्दी उठ करके आए हैं और अपना वक्त निकाल कर अगर यहाँ बैठे हैं तो do you think ये 90 minutes आपके लिए सही होंगे? Sure. Right? So that's where I just wanted to share कि मैं आपके साथ जो भी शेयर करूंगा it's not something जो मैंने किताबों में पढ़ा हुआ, it's not something कि जो किसी की बातें सुन करके मैं शेयर करने जा रहा हूँ, it's something कि जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, उसी एक्सपीरियंस में से आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ. So I would like to know कि क्या आप ये 7 formulas जो आपको 10x success 10x growth की ओर लेकर जाएंगे, क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? Yes. Alright then guys, so I believe आप सभी के पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए होगा because there will be a lot of learnings today और वो सारी चीज़ों मैं चाहूँगा कि आप notes बनाएं, if not तो at least मेरे presentations के pictures ले सकते हैं, whatever, but वो notes ज़रूरी है because to be honest with you, आप लोग जब भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, being a part of a business network, आप जब भी कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें, चाहे कोई वेबिनार्स हो या कोई लाइव सेमिनार्स, you always have to make notes. You always have to make notes. Believe me. एक ऐसा डायरी बना लो अगर अभी तक नहीं बनाया है तो, कि जिसमें 2 साल पुराने ट्रेनिंग्स भी मिलने चाहिए आपको. ओके? अब देखिए ऑप्शन नहीं है इसलिए आप लोग मोबाइल में सेव करो. अगर मैं बता दूं मोबाइल में सेव किया हो कभी काम नहीं लगने वाला. ऑप्शन नहीं है, इट्स फाइन, बट वो कभी काम नहीं लगने वाला बिकॉज वो फोटोज कभी मिलते नहीं है. Okay? और जब आप खुद लिखते हो, that's where your brain gets involved in the process, and that really matters. ठीक है? So in future, make sure you have a wonderful diary कि जिसमें आपने सारे trainings, like मैंने अभी तक अपनी लाइफ में 100 से ज़्यादा workshops attend किए हैं और मैं आपको 15 साल पुराना workshop का भी मेरा notes दिखा सकता हूँ. Okay? अब मैं आपको कहूँ मोबाइल में आपके सिंगापुर के फोटोग्राफ्स दिखाइए नहीं मिलेंगे आपको, मुश्किल है. Okay? So anyways, doesn't matter. Moving on. So यहाँ पर number 1 formula जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, that is setting a specific goal. अब मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी अनजान है कि हमें गोल सेट करना चाहिए. Like everybody knows, कि लाइफ में गोल होना चाहिए. और स्टैन सर ने अभी कटी पतंग की बात की. अगर आपके पास गोल नहीं है, सीधी बात है, आप एक जिंदगी कटी पतंग की तरह जीते हो. सुबह हुई, हवा आई, चल दी है. Okay? But when I'm saying that you have to have a specific goal, let me give you a practical example on this. Everybody knows this name, Harvard University. Harvard, back in 1979, there was a day of convocation. बच्चों को graduation का day था, उनको degrees दी जा रही थी, and on that day, they took a survey कि उनमें से कितने बच्चों की जिंदगी में एक specific goal था. And surprisingly, 84% बच्चे ऐसे थे जिनकी लाइफ में कोई गोल ही नहीं था. उनको पता ही नहीं था उनको लाइफ में करना क्या. 13%, 13% बच्चे ऐसे थे जिनकी लाइफ में गोल तो था मगर वो गोल माइंड में सोचा हुआ था, कहीं पर लिखा हुआ या नोट बनाया हुआ नहीं था, माइंड में सोचा हुआ था. और बाकी बचे 3% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने गोल्स को कागज पर लिख करके उसे अपने सामने लगा कर रखा हुआ था. एंड गेस व्हाट, 10 years later 1989 वो सारे बच्चों के साथ एक और बार सर्वे किया गया कि वो अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हुए. रिजल्ट ये निकला कि वो 84% बच्चे जिनकी लाइफ में कोई गोल नहीं था, वो सारे मिल करके जितने सक्सेसफुल थे और जितना पैसा कमा रहे थे. वो 13% बच्चे जिनके माइंड में गोल था, वो उस 84% से डबल कमा रहे थे. कितना? डबल. ओके, अपने बाजू वाले से कहो डबल कमा रहे थे. गुड जॉब. नाउ अब देखिए 84% से वो 13% डबल कमा रहे थे, तब तक तो ठीक है. लेकिन वो 3% जो थे ना, सिर्फ 3%, वो 3% जिन्होंने अपने गोल्स को कागज पर लिखा हुआ था, अपने सामने लगा कर रखा हुआ था, कैन यू बिलीव वो 97% बच्चे सारे मिलकर जितना कमा रहे थे टोटल, वो 3% उनसे भी 3 गुना ज्यादा कमा रहे थे. 3 times more. और आपने ये सुना हुआ है कि दुनिया में 4% लोग 96% पैसा कमा रहे हैं और 96% लोग 4% पैसा शेयर कर रहे हैं. And if you want to be in that 4% or 3%, the top, in that case, what you need is a specific goal. और सिर्फ गोल नहीं, उसे लिख करके अपने सामने रखना जरूरी है. क्यों सामने रखना जरूरी है? Okay, let's do a small exercise here. ठीक है? मैं चाहता हूँ कि सभी ऐसे करें. सोचो मत करो.
ओके, अब मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 5 पर हमें क्लैप करना है। किस पर क्लैप करना है? 5 पर क्लैप करना है। तैयार हो जाइए, 5 पर क्लैप कर रहे हैं सभी, मेरी ओर देखते रहिए। 5 पर क्लैप कर रहे हैं, मैं काउंट करने वाला हूं, ठीक है? 1 2 3 4 5। 80% लोगों ने गलती किया। Why so? मैं और मेरी गलती कौन निकाला? Guys, प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने आपको 5 बार कहा कि आपको 5 पर क्लैप करना है, उसके बावजूद आप में से 80% लोगों ने 4 पर क्लैप कर दिया, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने 5 बार सुना कि 5 पर क्लैप करना है, मगर आपके माइंड ने देखा और जो देखा वो एक ही बार में फॉलो कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अब सिर्फ गोल्स बोलने नहीं है, सिर्फ गोल्स सुनने नहीं है, गोल्स को दिखाना पड़ेगा, सामने लगाकर रखना पड़ेगा। सी बिकॉज हम सभी ऐसे लोग हैं कि हम गोल्स तो सेट कर देते हैं, बट वी आर लाइक गजनी। 15 मिनट्स मेमोरी लॉस। कल रात को भी गोल सेट किया था, सुबह उठने का। अब वो बियर में चले गया या पता नहीं कहां चले गया। ओके, 15 मिनट्स मेमोरी लॉस। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि हम गोल तो सेट करते हैं, लेकिन अगर उस गोल को हमने सामने नहीं रखा है तो हम उस पर फोकस नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, उस पर हम एक्शंस नहीं लेने वाले हैं। सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, दैट्स नंबर 1 रूल यू नीड टू फॉलो। और अगर ये आपको समझ आ रहा है तो उसे एक स्टेप में आपको और भी आगे लेकर चलता हूं। अ पर्सन कॉल्ड जॉन गुडार्ड, बैक इन ये कहानी होगी 1950-60s की ना, बैक इन जब कहीं मैं कहूँगा कि टीवीज बस अभी मार्केट में आना शुरू हुए थे और ये बहुत छोटे थे तब, 15 साल के थे। अब इन्होंने टीवी के ऊपर अलग अलग दुनिया के महान लोगों को और दुनिया की अलग अलग जगहों को जब देखना शुरू किया, वो सिर्फ जब 15 साल के थे उनके मन में ख्याल आया कि यार दुनिया में अगर इतनी सारी जगहें हैं और इतने सारे लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ही एट द एज ऑफ 15 हेलो, थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए। ऑलराइट, बेटर, ठीक है, थैंक यू। सो उन्होंने 15 साल की उम्र पर बैठ करके अपनी जिंदगी में 127 गोल्स का लिस्ट बनाया। कितने? 127। और 127 गोल्स का जो उन्होंने लिस्ट बनाया, और वो कोई मामूली गोल्स नहीं थे, सारे पागलपन से भरे हुए गोल्स थे। कैसे? देखिए, ही डिसाइडेड कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिवर नाइल जो है, जिसकी 6,500 से भी ज्यादा लंबाई है, वो पार करना चाहते हैं। दुनिया के सारे वंडर्स को देखना चाहते हैं, वायलिन या फ्लूट बजाना चाहते हैं, खुद की किताब लिखना चाहते हैं, मूवी में आना चाहते हैं, एक प्लेन उड़ाना चाहते हैं, चांद पर जाना चाहते हैं। सो बेसिकली क्रेजीनेस, फुल ऑफ क्रेजीनेस, ऑल द क्रेजी गोल्स। अगर कोई एक इंसान जीते जी इसमें से एक गोल भी अचीव कर ले, डू यू बिलीव कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में चले जाए? अगर एक गोल भी अचीव कर ले। इस पागल ने 127 गोल्स लिखे थे, 127 गोल्स, फुल ऑफ क्रेजीनेस, नामुमकिन से गोल्स। एंड व्हाट डू यू थिंक, वो कुछ अचीव कर भी पाया होगा? सरप्राइजिंगली when he turned 59, जब वो almost 60 साल के हुए, he analyzed his life, reviewed his life to check कि उसने कितना अचीव किया। And surprisingly, out of 127 goals, this guy had achieved 109 goals. And he became to be known as the world's greatest goal achiever. और जब उनका एक इंटरव्यू लिया गया कि आपने इतने सारे गोल्स कैसे अचीव कर लिए, what's the secret formula? Do you know what he shared? The secret formula was nothing but, वो कहते हैं कि मैंने अपने सारे गोल्स को अपने रूम में हर जगह पर लगा के रखा हुआ था, अपने सामने। मतलब ना चाहते हुए भी दिन में 25 बार मुझे वो गोल्स दिखते थे। बिलीव मी, आपका फोकस जिस ओर जाएगा, आपकी जिंदगी भी उसी ओर जाने वाली है। So
If you wanna achieve your goals, what you need to do is कि goals set करो और उसे अपने सामने लगा कर रखो, चाहे वो आपके मोबाइल के वॉलपेपर में हो सकता है, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हो सकता है, ऑफिस की केबिन में हो सकता है, बेडरूम में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, हर जगह उसे अपने सामने रखना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू फोकस्ड, और जितना आप फोकस्ड रहोगे उतना ज्यादा आप अचीव करोगे। सो इफ दिस मेक्स सेंस, क्या करना चाहिए? आज का सबसे पहला असाइनमेंट क्या होगा? Absolutely. Write down your goals और उसे घर पे जाकर के अच्छे से अपने सामने लगा कर रखना है, जहां पर आप देख सकते हैं। Alright? And लेकिन जब आप गोल सेट करते हैं, गोल्स का मतलब आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने के गोल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा इतना इनकम है, 6 महीने में इतना हो जाए, ओके, वो भी होने चाहिए 6 महीने के गोल्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स। सी, दुनिया में 5 कैटेगरी के लोग हैं, इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। दुनिया में 5 कैटेगरी के लोग हैं। नंबर 1, वेरी वेरी पुअर, जो बहुत गरीब है, और जो बहुत गरीब है उसमें हो सकते हैं जो मांग कर खाना खाते हैं, यानी कि बेगर्स। और जो मांग कर खाना खाते हैं दोस्तों, वो कितना लंबा सोचते हैं? सिर्फ एक दिन, आज शाम तक मुझे 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया कमाने को मिल जाए, जस्ट 1 डे, दैट्स इट। उससे लंबा वो लोग कभी नहीं सोचते। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी में है, पुअर, वो होते हैं मजदूर। मजदूर जो है वो शारीरिक मेहनत करके, फिजिकल लेबर करके कमाते हैं, और उनका कितना लंबा गोल है? 1 दिन, 2 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता। हर मजदूर को मजदूरी दी जाती है कितने पर? 1 वीक, 1 हफ्ते पर, ओके। एंड इसीलिए वो ज्यादा नहीं, बट अगेन 100, 200, 300, 500, 1000 तक कमा लेता है। अब थर्ड कैटेगरी, दैट इज मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो कितना लंबा सोचते हैं? 1 मंथ। ज्यादातर केस में सैलराइज्ड होते हैं, और आप ऑब्जर्व करिएगा कि वो लोग सैलरी में 15,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए तक कमा लेते हैं, हर महीने का उनका सैलरी होता है। लेकिन अब एक और कैटेगरी आती है, दैट इज रिच। वो लोग कितना लंबा सोचते हैं? एवरेज 1 साल। ये लोग जॉब करते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहां पर उनको पूरे साल का पैकेज मिलता है, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, एचओडीज हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड पीपल लाइक दैट, कि जहां पर 1 साल का पैकेज, एग्जांपल किसी का 12 लाख का, किसी का 25 लाख का, किसी का 50 लाख का। और जो वेरी रिच की कैटेगरी में है, वो वेरी रिच में ज्यादातर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। और वो जो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका गोल एटलीस्ट मिनिमम 5 से 10 साल का होता है। यू नो व्हाट? जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री शुरू करता है, पहले 2 साल तो सिर्फ वो वेट कर रहा है कि उसका काम कब शुरू होगा। फिर और 2 साल तक वो वेट करता है कि जितना पैसा डाला है उतना भी कब निकलेगा। और चौथे या 5वें साल के बाद तो प्रॉफिट शुरू होता है। ओके, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम जो वो देख रहा है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि जो जितना छोटा सोच रहा है उतना कम कमा रहा है, और जो जितना लंबा सोच रहा है उतना ज्यादा कमा रहा है। सो क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, वेलोसिटी में क्यों आए? नहीं, अपना तो बस महीना 2 महीना काम कर लेते हैं, जो अपना रिपोर्ट निकाला उतना खर्चा निकल जाए, ठीक है। 5-10 को बता दिया, अपना निकल गया है, काफी है। अरे नहीं, एक आध टूर कर लेते हैं, एक टूर अचीव कर लेंगे, वसूल है। इफ यू विल थिंक शॉर्ट टर्म, तो कभी भी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। यू हैव टू प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम। और अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, मिनिमम साल 2 साल के प्लानिंग से आप वेलोसिटी बूस्टर के साथ कनेक्ट हुए हैं, दैट्स द राइट वे ऑफ थिंकिंग, और वही है जो एक्चुअल आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाएगा। बिकॉज जो लोग आज वेलोसिटी के साथ 1 साल से बढ़कर जुड़े हुए हैं, उनको 1 महीने के बाद लग रहा था अपना तो वसूल हो गया है, बट 1 साल के बाद पता चला यार गेम तो अभी शुरू हो रहा है। How many of you have been with Velocity more than 1 year now? More than 1 year. So, I'm happy कि यहाँ पर 10 to 15% लोग हैं जो 1 साल से ज़्यादा से है, और मैं बाकी सबके लिए कहना चाहूँगा कि गाइज, अभी तो सिर्फ आपका इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है। और अगर इंडक्शन प्रोसेस में ही कभी कभार हम शॉर्ट साइटेड हो जाएंगे, अरे यार अभी तो कोई इनकम नहीं आ रहा, अरे यार वो पैर नहीं बन रहा है, so it's not going to work. This is the induction process. आपने चलना कब सीखा था? 1 साल के बाद, 10 महीने के बाद, राइट? अगर चलना सीखने में 1 साल निकल गया था, तो बिजनेस को चलाने में भी 1 साल लग सकता है।
You have to have that vision. You have to have that long-term thinking. Again, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल wait करना है. What I'm talking about is taking the right actions, but with a game plan जो at least साल, 2 साल, 5 साल का होगा. So जितना लंबा सोचोगे, उतना ज़्यादा growth पाओगे. When people ask me कि इसने तुम इतना अच्छा stage पर कैसे बोल सकते हो, इतना अच्छे से कैसे चीज़ों को present करते हो, and that's where I say भाई 25 साल हो गए. So that's where the more hours you spend in any field, ऐसा कहा जाता है जब आप 10,000 घंटों से ज़्यादा कोई एक फील्ड को दे देंगे, आप उस फील्ड में जीनियस बन जाएंगे. और एक नॉर्मल इंसान का प्रॉब्लम पता है क्या है? आज ये काम 2 महीने के बाद बोर हो गया, फिर दूसरा वाला, और 2 महीने के बाद बोर हो गया, फिर तीसरा. He never thinks for a long term game. और जब वो लॉन्ग टर्म नहीं है कोई एक फील्ड में, तो कभी जीनियस नहीं बन पाता. So it is not important कि कौन सा करियर और कौन सा बिजनेस सही है. What is important is कि जिस करियर और बिजनेस में हो, उसमें क्या आप जीनियस बन पा रहे हो. So how many of you are committed to give more than 10,000 hours? How many of you are committed to give at least 5 years of your life to Velocity Booster? Wow, beautiful, beautiful. Guys, यही है जो आपको ग्रेटनेस की ओर लेकर जाएगा. So if you have raised your hand in that case, अब आपको आपके बाजू वाले से कहना है, I'm committed for 5 years to Velocity Booster. Tell, come on guys. Come on. Beautiful. और एक असाइनमेंट देता हूँ, अभी आपके बाजू में कौन बैठा है पता नहीं है, ठीक है? आपके ग्रुप में से हो सकता है, आपकी टीम में से हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका फैमिली भी हो सकता है. बट वन मोर असाइनमेंट, अगले ब्रेक के दौरान आपको जाकर के अपनी अपलाइन से मिलना है जो आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया था. ऑलराइट? और उसे जाके कहना है दैट आई एम कमिटेड टू वेलोसिटी बूस्टर फॉर 5 years. और आप लोग बहुत खुश नसीब है कि स्टैन सर इस तरह से आपके बीच में है. मैं आपको बताऊं, जनरली यू नो इन सच अ बिजनेस मॉडल वो लोग हमेशा वीआईपी बन के घूमते रहते हैं. एंड मैं स्टैन भी जब बोल रहा हूँ तो बहुत कम लोगों को मैं फर्स्ट नेम से पुकारता हूँ, जिसमें से स्टैन सर इसीलिए है बिकॉज ही इज बीन ऑलवेज अ ग्रेट फ्रेंड, नॉट अ काइंड ऑफ अ एमडी ऑफ अ कंपनी. राइट? और इसलिए मैं कहना चाहूंगा दैट इफ ही इज अवेलेबल विथ यू फॉर 3 days, तो उनको जाकर भी आपको बताना है दैट स्टैन, आई एम कमिटेड टू वेलोसिटी बूस्टर फॉर 5 years. Alright? See, when you will do this, तो ये एक अलग माइंडसेट और प्रोग्रामिंग क्रिएट करेगा जो आपके फ्यूचर में आपकी सीरियसनेस को बढ़ाएगा, फोकस को बढ़ाएगा. एंड दैट्स व्हाट आई वांट, राइट? सो दैट्स द नंबर 1 थिंग व्हिच वी हैव लर्न टुडे. ऑलराइट, एंड अब जब हमने लंबा सोचने का डिसीजन ले ही लिया है, आपको अब आज से ये डिसाइड कर लेना है कि आपका फ्यूचर गेम प्लान क्या होगा. आप अभी कहाँ हैं और आपको कहाँ पर कब पहुंचना है. Alright? Now that could be after 6 months आपका रैंक क्या होगा, आपके 1 साल के बाद का रैंक क्या होगा, 2 साल के बाद का रैंक क्या होगा. वो गेम प्लान आप जितना जल्दी डिसाइड करने के साथ उसे लिख करके अपने सामने लगा दोगे, that's what your real goal would be. Alright? So this is again an assignment and a homework guys, and this is what you're supposed to do. See, मैं बहुत सारे assignments आपको देने वाला हूँ. रीजन बहुत सिंपल है. Knowledge not used is garbage. Let me repeat that. Knowledge not used is, आज YouTube पर सब कुछ अवेलेबल है. आज जितना मोटिवेशन अवेलेबल है उतना पहले कभी नहीं था, और आज जितने डिप्रेस्ड लोग हैं उतने पहले कभी नहीं थे. So the challenge is not the availability of the knowledge, but the application of the knowledge. Right? So यहाँ पर second point आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, that is everything is created twice in this world, first in the human mind, then in the outside world. दुनिया में हर एक चीज 2 बार बनती है, पहले इंसान के माइंड में, उसके बाद बाहर के दुनिया में. जिन्होंने पहली बार एरोप्लेन बनाया, उन्होंने कभी ना कभी मन में तो सोचा होगा कि हम ऐसी चीज बनाएं जो पंछी की तरह उड़ सके, और बाद में बाहर के दुनिया में लोग एरोप्लेन बनाए थे. राइट? या फिर आपने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा. मैकडोनल्ड्स पूरी दुनिया में 36,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, मोर देन 36,000 फ्रेंचाइजीज अक्रॉस द ग्लोब. और उनके ओनर, उनके क्रिएटर को जब पूछा गया कि सर आप अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार सफल कब हुए, और वो जवाब देते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार सफल तब हुआ जब मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, और एक रोड की बेंच पर बैठे बैठे जब पहली बार मैंने आंखें बंद करके अपने मन में मैकडोनल्ड्स की चेन को देखा था, तब सबसे पहली बार मैं सफल हुआ था.
और आज भी हर मैकडॉनल्ड्स के बाहर आपको बेंच दिखता है, एक इंसान बैठा हुआ भी दिखता है, उसके बाजू में बैठकर हम भी फोटो खिंचाते हैं, that kind of a statue of a clown or something like that, right? So the thing is, you know, वो एक सिंबल है वहां पर कि भी जिसने सपना एक रोड की बेंच पर बैठकर देखा था, आज वो सपना आपके सामने पूरा हो चुका है. Not just couple of restaurants, we're talking about 36,000 restaurants, one of the most successful chain of restaurants or the franchise model जिसने दुनिया को दिया है, right? So that's called the power of visualization, कि आपके अंदर एक विजन, एक पिक्चर है कि मुझे कहां पर पहुंचना है, क्या बनना है. So once you have a goal, a specific goal in your life, फिर आता है कि उसे अपने माइंड में इमेजिनेशन के अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर सेट कर दीजिए कि मुझे यहाँ पहुंचना है, ये बनना है. चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके? विजुअलाइजेशन के पावर को एक्सपीरियंस करते हैं राइट नाउ एट दिस मोमेंट. सो करना क्या है, हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसके लिए जब मैं कहूँ तब आप अपने दोनों हाथों को सामने रखेंगे कुछ इस तरीके से. जब मैं कहूँ तब पहले देख लीजिए क्या करना है. सो यू नो, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, फिर अपनी आंखें बंद करेंगे. आंखें बंद करने के बाद हमें इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि हमारे दोनों हाथ एक मैग्नेट बन चुके हैं. क्या बन चुके हैं? मैग्नेट. ओके, जब हम विजुअलाइज करेंगे कि दोनों हाथ एक मैग्नेट बन चुके हैं तो क्या होगा? दोनों हाथ एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे एंड स्लोली एंड स्टेडीली दे विल कम क्लोजर. बट आप जितना अच्छा विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और जितना फोकस्ड रहोगे, कंसंट्रेशन रखोगे, उतना फास्ट आपको रिजल्ट मिलेगा. सो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं मेरे शब्दों के साथ, मेरे गाइडेंस के साथ. ऑलराइट, सो दोनों हाथ अब सामने रखिए, दोनों आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, और दोनों हाथों के बीच में 4 से 5 इंच का अंतर, नॉट मोर, जस्ट हाफ अ फीट. ऑलराइट, ओके, गुड. क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, और इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपके दोनों हाथ एक मैग्नेट बन चुके हैं. इमेजिन कीजिए कि आपके दोनों हाथ एक चुंबक, एक मैग्नेट बन चुके हैं जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और भी करीब आ रहे हैं. हाथों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, और भी अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, और आपके दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं. आपके दोनों हाथ एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं. आपका एक हाथ नॉर्थ पोल है, दूसरा हाथ साउथ पोल है. दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, अट्रैक्ट होते जा रहे हैं. जब दोनों हाथ एक दूसरे को छू ले तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. तब तक मन में देखिए कि कैसे आपके दोनों हाथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और भी करीब आते जा रहे हैं. आपके दोनों हाथ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं. जब वो एक दूसरे को छू ले तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. ऑलराइट, स्लोली ओपन योर आईज गाइस. धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. ऑलराइट, ओके. कल में कितने लोगों ने वो अट्रैक्शन को फील किया? रेज योर हैंड. वाओ, दैट्स ग्रेट. मोर देन 60-70% पीपल. ऑसम. सो मुझे बताइए वो मैग्नेट कहाँ था? हाथों में? No, it's in the mind. See, it's not कि आपके हाथ अट्रैक्ट हो रहे थे. What happens is when you visualize, there are micro movements, और वो micro movements से आप ही वो कर रहे थे. Nobody else was doing it. It's not a magic, you know. It's a scientific phenomena that's called the idiomotor response of your subconscious mind. All right. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि just because क्योंकि आपने visualize किया, वो micro motors active हुए, जिसने धीरे धीरे वो attraction किया, मतलब आपने किया था. But what I'm talking about is कि उसको आपने जब mind में create किया वो बाहर हुआ. But there were few people, you know, they were like, चल मैं भी देखता हूँ कैसे होता है, तो नहीं होने वाला. Okay, this is not a magic. Okay, आपको believe करना पड़ेगा. If you believe it, then it happens. So if you can understand this, I hope you can understand the power of visualization. And visualization has been used by all the great people in the world. आप इन सबको जानते हैं, हर एक को जानते हैं. Like the first one, top left में जो है, Lindsey Vonn. She has been 7 times gold medalist or the world champion in skiing. She uses visualization before every race, every competition. या फिर MS धोनी, वो हमेशा अपनी टीम को ग्राउंड पर लेकर जाकर सर्कल में खड़े रहते थे और विजुअलाइज करवाते थे कि हम ऑलरेडी ये मैच जीत चुके हैं. शाहरुख खान, उन्होंने जब बॉलीवुड में शुरुआत की, उनके फैमिली में कोई नहीं था बॉलीवुड में. दैट वाज द टाइम जब उन्होंने एक गोल सेट किया था दैट ही वांट्स टू बिकम अ सुपरस्टार, एंड ही गॉट अ बुक. द बुक नेम इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बाय शक्ति गयवान. और इस बुक को पढ़ करके he decided कि मुझे किंग खान बनना है. He started using this visualization technique. और आपको याद होगा जब मन्नत बन गया, the dream house which he wanted to create, मन्नत बना, उसके बाद रेड चिली प्रोडक्शन का एक फिल्म आया था ओम शांति ओम. In that film he had explained this concept very well, wherein he shared कि जब कोई चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. Right? And it was a very famous dialogue. I believe everyone has seen that movie.
उसी के साथ धीरू भाई अंबानी हमेशा कहते थे कि सपने देखिए तो वो सपने पूरे हो सकते हैं, या सचिन तेंदुलकर। आई रिमेंबर आई हैड मेट सौरव गांगुली। मैं सचिन से कभी मिल नहीं पाया अभी तक, बट यू नो सौरव गांगुली के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था इस सब्जेक्ट पर, हम लोगों ने बातें करी थी। एंड सौरव एंड सचिन हैज बीन ओपनिंग फॉर इंडिया फॉर मेनी ईयर्स टुगेदर एंड दे आर गुड फ्रेंड्स। तो आई रिमेंबर जब सौरव ने शेयर किया था कि इसने सचिन हैज बीन यूजिंग दिस टेक्निक फॉर सो मेनी ईयर्स। वो कहते हैं कि सचिन बैटिंग में जाने से पहले आखिर के 5-10 मिनट गायब हो जाते थे हमेशा। सो काफी बार वो अकेले कोने में बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, वॉशरूम में है। सो मैं उनसे एक बार पूछा, सचिन व्हाट डू यू डू, आप बैटिंग में जाने से पहले क्या करते हैं? आप कोई प्रेयर करते हैं, कोई मंत्रा बोलते हैं? एंड दैट्स वेयर सचिन शेयर कि नहीं, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आज पिच पर जाके मैं सेंचुरी मारूं। एंड ही यूज्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन and that's where he is the world's best, right? या फिर उसी के साथ आइंस्टाइन यूज्ड टू से कि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने आने वाले फ्यूचर को अभी से देख लेते हैं। अनुष्का शर्मा यूज्ड विजुअलाइजेशन कि उनको यशराज बैनर से अपने करियर को शुरू करना था, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। रब दे मनादी जोड़ी जो पहली फिल्म उनकी आई थी। या फिर ऑपरा विनफ्रे हैज अ सिमिलर स्टोरी। माइकल जॉर्डन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू बास्केटबॉल, द गॉड ऑफ बास्केटबॉल, वो कहते हैं कि मैं जितनी बार प्रैक्टिस करता था बास्केट हिट करने की, उससे ज्यादा बार आंखें बंद करके मैं विजुअलाइज करता था कि मैं वो बास्केट हिट कर रहा हूं। मतलब कि बिफोर आई यूज्ड टू लॉन्च द बॉल, मेरे अंदर विजुअलाइजेशन हो जाता था कि वो बास्केट हो चुका है, और उसी के बाद मैंने बॉल को हिट किया था। या फिर मोहम्मद अली दी राइट बॉटम, मोहम्मद अली वो हमेशा जब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे तो हमेशा उस विजुअलाइजेशन स्टेट में रहते थे। विद एवरी पंच, एवरी प्रैक्टिस उनको यही लगता था कि ऑडियंस आसपास है, उनके लिए चीयर कर रहा है और वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। अलॉन्ग विद दैट मुथैया मुरलीधरन अगेन ही यूज्ड टू विजुअलाइज कि मैंने ऑलरेडी 5 विकेट का हॉल्ट आज ले लिया है। या फिर अक्षय कुमार, द बिगर फोटोग्राफ व्हिच इज देयर गाइस, अक्षय ही स्टार्टेड हिज करियर एज एवरीवन नोस, वो बैंकॉक में एक शेफ के रूप में काम करते थे। ही वॉज अ मार्शल आर्टिस्ट, और उनकी लाइफ में 3 लोग बहुत मैटर करते थे, उनकी जिंदगी के रोल मॉडल्स थे। श्रीदेवी, जैकी चैन, सिल्वेस्टर स्टैलोन। ये 3 के फोटोग्राफ्स उन्होंने अपने रूम में लगा कर रखे हुए थे। अब तब उनको विजुअलाइजेशन के बारे में पता नहीं था, फोटोग्राफ्स के पावर के बारे में पता नहीं था, गोल सेटिंग के बारे में पता नहीं था। व्हाट हैपेंड वाज व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, उनका अच्छा फिजिक होने की वजह से उनको एक मॉडलिंग का प्रोजेक्ट मिला। So he went in, and 2-4 घंटे में कुछ अच्छा पैसा कमाने को मिला। Now this story has been shared by him during his interviews, ये YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है। So उनको जब वो मॉडलिंग का प्रोजेक्ट मिला और कम टाइम के अंदर पैसा कमाने को मिला, he thought that this is a good business, मैं अगर मॉडलिंग में आगे बढ़ता हूँ that would be great। लेकिन मॉडलिंग में आगे बढ़ने के पहले हमेशा एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, काइंड ऑफ अ फोटो शूट। ओके, सो ही वेंट फॉर अ फोटो शूट, और वो जुहू के एक बंगले के पास एक फोटो शूट के लिए गए, जहां पर अलग अलग पोजेस में फोटो खिंचा रहे हैं। और वो बंगले के, अब अक्षय कुमार की स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को जानते हैं, तो वो बंगले की जो वॉल थी उसके ऊपर चढ़ गए और खड़े रह करके और लेट करके भी फोटो खिंचाए। अब हुआ कुछ ऐसा कि वो बंगले के वॉचमैन या सिक्योरिटी वाले आगे थोड़ी देर के बाद और उनको वहां से भगा दिया। लेकिन वो पिक्चर इतना अच्छा था कि वो पिक्चर उन्होंने लगा दिया अपने घर में, वो वॉल के ऊपर का, बंगले के आगे का। एंड वो 3 पिक्चर आगे के, श्रीदेवी, जैकी चैन, सिल्वेस्टर स्टैलोन, एंड 1 मोर पिक्चर वो बंगले वाला, वॉल वाला। ठीक है, गेस व्हाट, वो अपनी लाइफ में, करियर में आगे बढ़ते गए, फिर बॉलीवुड में आने लगे। ओके, ही बिकेम सक्सेसफुल, पैसा भी कमाना शुरू किया। अब आप मानोगे नहीं, उन्होंने जो 3 फोटोग्राफ्स कभी लगाए हुए थे, श्रीदेवी, जैकी चैन, सिल्वेस्टर स्टैलोन, वो तीनों के साथ सक्सेसफुली फिल्मों में काम कर चुके हैं। और वो जो बंगले का फोटोग्राफ लगाया जहां से उनको भगा दिया था, he owns that bungalow today, he resides there। एंड उन्होंने खुद वो बंगलो खरीदने के बाद वो सेम वॉल के ऊपर जा करके सेम वो लेटा हुआ फोटो खींचा, और वो दोनों फोटो को कंपेयर करके अपने पास रखा हुआ है। एंड ही हैज शेयर्ड दैट इन दैट इंटरव्यू कि मैंने कभी यहाँ पर इस वॉल पर ये फोटो लिया था और आज। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज it's the power of visualization। So all these great people have used this power। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने अपने फ्यूचर को विजुअलाइज किया है? Guys, let me give you a real life story। Now all this were real life stories, but one more। आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम सुना होगा, the creator of Disney। वॉल्ट डिज्नी, वो अपने डिज्नी वर्ल्ड के प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत सारे लोगों के पास गए, but he was rejected। Nobody was giving him finance, nobody was investing with him। उनको ज्यादा तो नहीं, मगर 300 रिजेक्शंस मिले थे। कितने? 300 रिजेक्शन। डू वन थिंग, आपके बाजू में जो बैठे हैं उनसे कहो 300 रिजेक्शंस।
Yes. 300 rejections, guys. पता है? ठीक है बस कोई आवाज आ रही थी वहां से सुन. That's fine. Thank you. So, you know. 300. Thanks, everyone. The mic चालू. बंद है? Hello, 1 2 3 testing. Hello. Alright, good, thank you. क्या बात कर रहे थे? 300 rejections. ये आपने बोला तो आपको याद है. 300 rejections. हमें जब हम अपने कोई क्लाइंट के पास या प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं 30 रिजेक्शन मिल जाए ना 30 कंटिन्यूअसली तो हम ये बिजनेस ही छोड़ देते. उस आदमी को 300 रिजेक्शन मिले थे उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहा था तब तक तो ठीक है. 300 के बाद कोई मिला जो उसको इन्वेस्ट किया, सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, एंड दैट्स हाउ द बिजनेस स्टार्टेड. नाउ द क्वेश्चन, हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई आदमी 300 रिजेक्शंस तक सस्टेन कर पाया था? उसके अंदर वो पॉजिटिविटी कहां से? Because he was using the power of visualization each and every day in his life when he used to visualize कि वो डिज्नी वर्ल्ड बन चुका है, मेरा कंपनी रेडी हो चुका है, इट्स सुपर सक्सेसफुल. वो हर दिन विजुलाइज करते थे. ओनली 5 minutes ऑफ विजुलाइजेशन एवरी डे इनसाइड द माइंड वाज हेल्पिंग हिम कि बाहर की दुनिया से जितने भी रिजेक्शन आ रहे थे, जितने भी उसको ना सुनने पड़ रहे थे, उस नेगेटिविटी के सामने वो लड़ पा रहा था जस्ट बाय 5 minutes of visualization. It works as a vaccination kind of immunity. देखो दुनिया में बाहर से रिजेक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलने ही वाले हैं. You cannot change this, right? 10 में से 10 लोग हाँ कभी नहीं बोलने वाले. That's common sense. और 10 में से 10 दुनिया की तो बात दूर है, पहले तो अपने परिवार वाले ही मना करते हैं. सबसे ज्यादा अपोज करने वाले लोग हमारे घर में ही है कि तूने क्या शुरू कर दिया है, क्या जरूरत है, जो पहले करता था वही बराबर था. Okay? People are gonna oppose you, but what I'm talking about here is कि जब आपको rejections मिलते हैं, what matters is what is going inside you. और अगर आप अपने goals को at least 5 minutes हर दिन visualize करते हैं कि मुझे future में क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, that's gonna change the whole game. आज जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर को मैंने कभी विजुलाइज किया था each and every day. सरकार मूवी आया था, everybody knows the movie? सरकार, right? सरकार में अमिताभ बच्चन का एक सीन था, सरकार पार्ट 1 पहला वाला सीन था कि वो अपने घर से बालकनी में आते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और नीचे भीड़ खड़ी है और लोग उनको वेव कर रहे हैं, देखने के लिए खड़े हैं. That was my dream. स्टैन आप जिस घर पे आए हैं, कभी मेरा ड्रीम था जब मैंने वो मूवी देखा तब कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए कि मेरी बालकनी के बाहर 2000 लोग खड़े रह सकते हैं. एंड दैट्स द हाउस आई एम स्टेइंग. क्या 3000 लोगों की जगह है? So, I can understand that and relate to this point really well. And वही मैं चाहता हूँ आपके लिए कि आप विजुलाइज करो कि आपका फ्यूचर क्या होगा. That's gonna be your inspiration. That's gonna be a motivation. और वही है जो आपको पॉजिटिव रखने वाला है. I'll tell you this, for that make a vision board. If you don't have a vision board, then make one. Vision board का मतलब होता है कि जो goals मैंने आपको आगे लिखने के लिए कहे, उसको pictures में convert करो. कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा घर खरीदना है, pictures में convert करो और वो photographs को अपने सामने लगा करके रखो. So, what you need to visualize is couple of these things. मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिस्ट डाउन किया था. आपका अगला रैंक विजुलाइज करो, आपकी अगली इनकम विजुलाइज करो, कौन सी आपकी गाड़ी होगी, कौन से फॉरेन टूर पर आप जा रहे हैं, आपका घर कैसा होगा, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, कौन से स्टेज पर आपको कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, वो विजुलाइज करो. गाइस, ये स्टेज जिस स्टेज पर आप सभी क्वालिफाई होकर आए हैं, ये सबके लिए आसान नहीं है. आई मस्ट से आप भीड़ से अलग है और तभी जाकर यहाँ पर पहुंचे हैं. सो डू वन थिंग गाइस, अपना राइट हैंड सीधा कीजिए, उसे पीछे लेकर जाइए एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ. यू डिड ग्रेट जॉब टू मेक इट हियर. ऑलराइट, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, वेलोसिटी बूस्टर की सिर्फ शुरुआत है और ऐसे इससे भी बड़े बड़े स्टेज बनने वाले हैं. एंड वी हैव अ सेलिब्रिटी कमिंग टुमारो, राइट? और उनसे भी
अगेन कंपेयर नहीं करेंगे, बट मुझे ये पता है कि और भी ज्यादा सेलिब्रिटीज आने वाले हैं इस स्टेज पर. ओके, सो यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ ऑन दैट स्टेज. ओके, आई स्टिल रिमेंबर मेरे वाइफ को ये पता है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी के बारे में मैं विजुअलाइज करता हूँ तो कहीं ना कहीं साल 2 साल में ये हुआ है कि या तो सेलिब्रिटी से मैं कभी मिला, कभी उन्होंने ही मेरी बुक को इनॉग्रेट किया. I know the power of visualization works and it creates wonders. Okay, so 2 चीजें हैं जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करी थी. Number 1, what was the first one? Setting your goals, specific goals or long-term goals set करना है. Number 2, and that is visualization. And now comes number 3. तीसरी चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा, and that is आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है. सड़क पर जो एक गरीब है और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उन सभी के पास, दोनों के पास एक कॉमन चीज अवेलेबल है, दैट इज 24 आवर्स. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर यू यूजिंग दोस 24 आवर्स. बस वही डिसाइड करेगा कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है. हेलो, नहीं, कुंडली में वो जो लिखा है वो डिसाइड नहीं करता है आपके 24 घंटे कैसे होंगे. आप 24 घंटों में जो करोगे वो डिसाइड करेगी कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है. Let me give you a real example on this. मैं जब 16 साल का था, मेरे माँ बाप ने 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट को मेरी कुंडली दिखाई थी. अगेन मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अहमदाबाद, वडोदरा एंड सूरत के 3 बड़े बड़े नामी जो उस जमाने में कोई रेडियो में आते थे और कोई टीवी पर आते थे ऐसे. और वो तीनों ने मेरी कुंडली पढ़कर ये बोला था कि ये बच्चा जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाएगा. और आप में से जो लोग टाइम पर यहाँ पर आ चुके थे और मेरी स्टार्टिंग वाली स्टोरी सुन चुके हैं, सो अगर उनका ये कहना है कि अगर मैं सक्सेसफुल अभी नहीं हुआ तो आई टोटली फर्मली बिलीव दैट. आई वुड से कि आई वुड गिव लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू दोज पीपल कि जिन्होंने ये कहा, कि उस बहाने मुझे और बूस्ट मिला और बूस्टर के साथ मुझे लगता है और मैं 10x अपनी सक्सेस को लेकर जाऊंगा अभी जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां से. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज इट्स हाउ यू यूज योर 24 आवर्स. दैट्स इट. मैंने अपनी कहानी में आपको एक चीज बताई थी कि मैंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन और हर एक मिनट प्रोडक्टिविटी के ऊपर लगाना शुरू कर दिया. बट द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डू दैट. अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसका इजी तरीका पता है क्या है? एकदम इजी तरीका, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इज फर्स्ट एनालाइज योर 24 आवर्स. आप क्या कर रहे हैं पहले वो तो चेक कर लो. करना बहुत सिंपल है. एक एक्सेल शीट में हर आधे घंटे का टाइम लिखो. फॉर एग्जाम्पल 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, हर आधे घंटे का टाइम या 15 मिनट या 1 घंटे का टाइम. ठीक है, अब आप जो कर रहे हैं बस आपको उसमें लिखना है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 बजे से वो शीट बनाई है तो आप 6 से 8 के टाइम में क्या लिखोगे? स्लीपिंग 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 स्लीपिंग. फिर 8 से 8:30 में क्या लिखोगे? स्लीपिंग लेफ्ट साइड, स्लीपिंग राइट साइड. नहीं, आप जो कर रहे हो वो लिखो. ओके, जो भी आप कर रहे हो बस लिखते जाओ उसमें. दैट्स इट. फिर 8:30 से 9 में ओके मैंने ब्रेकफास्ट किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, जो भी आप करते हो हर आधे घंटे में लिखो. सो हर आधे घंटे में लिख सकते हो, 2-3 घंटा मिला करके लिख सकते हो, या मोबाइल में नोट्स बनाते हो, रात को सोने से पहले भी इसमें लिख सकते हो. बट व्हेन यू विल नोट डाउन कि आप पूरे दिन में कर क्या रहे हो, कौन से आवर पर आप कौन सी एक्टिविटी में हो, डू यू थिंक इट्स गोना गिव यू अ बिग रियलाइजेशन? Yes. Very much. Absolutely. See, I've been a corporate trainer for many years, और आपको पता है जब मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देता हूँ, एंड when the employees would listen to me और बहुत सारी तालियां बजाते हैं, उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता, सिर्फ मेरी लाइफ में बदलाव आता है, because I charge at least couple of lakh rupees for that. अब उनकी लाइफ में कब बदलाव आता है? उनकी लाइफ में तभी बदलाव आता है जब उसके मैनेजमेंट को, कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट को मैं एक रूल, एक पॉलिसी देता हूँ, और वो पॉलिसी ये है कि हर आधे घंटे का शीट बनाओ, 10 से 6 का जो जॉब आवर्स है, और वो शीट को हर हफ्ते हर एक एम्प्लॉय को फिलअप करके अपने सीनियर के टेबल पे रख के जाना है. वो लोग आज दिन तक मुझे गालियां देते कि किस गधे को बुलाया था, क्योंकि तब तक वो अपनी जॉब में बहुत खुश थे. फ्रेंड्स, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट फिलिंग अप तो आपको पता चलेगा कि आप दिन के 4 घंटे भी काम नहीं करते. आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि आप कितना सारी चीजों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो. बिकॉज सी नाउअडेज वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल इन आवर लाइफ. अभी आप यहाँ पर फोकस के साथ मुझे सुन भी नहीं पा रहे. क्यों? क्योंकि एक मोबाइल फोन नाम की चीज आपके हाथ में है.
और उसमें जैसे कुछ वाइब्रेट होता है, जैसे एक नोटिफिकेशन आता है, तुरंत हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल, और जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है उसमें अगर ये एनालाइज नहीं करेंगे कि आप अपने वक्त के साथ कर क्या रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क माय फ्रेंड्स। और इसलिए हर आधे घंटे पर क्या कर रहे हो पहले तो लिखो, जिससे पता चले कि क्या हो रहा है अपनी जिंदगी में, और फिर हम एक सिंपल से फॉर्मूला को फॉलो करना शुरू करें। दैट्स कॉल्ड 80-20 प्रिंसिपल, दैट्स कॉल्ड पैरेटो प्रिंसिपल। अब ये पैरेटो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, ये कहता है कि आप 80% ऑफ द टाइम जो काम करते हैं वो आपको 20% रिजल्ट देता है, और 20% ऑफ द टाइम आप जो करते हैं वो आपको 80% रिजल्ट देता है। There is a book, अगर आपको रीडिंग पसंद है, I'm going to recommend you a book. Book is written by someone called Tim Ferriss, 4-hour work week, यानी कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 ही घंटे काम करना है। अब आप कहोगे सर पूरे हफ्ते में अगर 4 घंटे काम करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, सक्सेस कैसे मिलेगी, बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। But that's what the book explains, कि भाई तुम बाकी जितने घंटे काम कर रहे हो सारा फालतू काम है जो हो रहा है, जिसमें तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला। पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे तुम वो काम कर रहे हो जो एक्चुअली तुम्हें रिजल्ट दे रहा है, एक्चुअली रिजल्ट दे रहा है। बट ओके, उस कॉन्सेप्ट में अभी नहीं जाना, बिकॉज हमारे लिए इस मोड पर 4 घंटे पॉसिबल है। वो 4 घंटे स्लोली एंड स्टेडीली आप उस लेवल तक अपने आप को लेकर जा सकते हो, दैट कैन टेक अ सर्टेन टाइम, वो टाइम ले सकता है। बट टू स्टार्ट विद मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे दिन में से तो 4 घंटे वो निकालो जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं, और अगर आपको वो मिल जाता है that's where you can be the most productive। और ये करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, किसी ने ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना है? ब्रायन ट्रेसी पढ़ा हो, सुना हो तो ग्रेट। सो ब्रायन ट्रेसी इज लाइक दिलीप कुमार इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री, बहुत पुराने हैं, उनकी उम्र की होंगे शायद, एंड अपने ज़माने के सुपरस्टार है व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी एट अ वेरी यंग एज, आई वाज एबल टू अटेंड ब्रायन ट्रेसी लाइव, मीट हिम, और मैंने उनसे एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसके ऊपर उन्होंने एक बुक लिखी है, जो बुक भी पढ़ने लायक है, ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग किसी ने पढ़ा है? ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट, अमेजिंग, ग्रेट, पढ़ने लायक है। सो ईट दैट फ्रॉग में से मैं आपको एक सिंपल टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कि आप रात को सोने के लिए जाए उससे पहले अगले दिन का स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फ्रॉग कौन सा है। ओके, सो ईट दैट फ्रॉग इज नॉट अ नॉन वेजिटेरियन बुक। ये बुक का कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रॉग का मतलब है आपके लाइफ में पूरे दिन का एक सबसे बड़ा, सबसे प्रोडक्टिव टास्क या चंक ऑफ टास्क कौन से है कि जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट और ग्रोथ दे सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्रॉग। सो सुबह उठ करके पहला काम क्या करना है? ईट दैट फ्रॉग। मैं समझाता हूँ व्हाट डज दैट मीन, मैं समझाता हूँ। सो हम जितने पूरे दिन में काम कर रहे हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में पहले तो डिवाइड करते हैं। ए मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स द फ्रॉग आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ए ऐसे टास्क होंगे, ऐसे काम होंगे कि जो आपको कहीं वो जैसे ही फिनिश करते हो आप, तो वो बहुत ग्रोथ दे सकता है, बहुत पैसा दे सकता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दे सकता है, बहुत लर्निंग दे सकता है, दैट्स कॉल्ड ए। ओके, some example on this, let's say आप मुझसे मिलने के लिए आए और मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ आपकी प्रोडक्ट को लेकर के, और आपको पता है स्नेह देसाई इज समवन जिसको 20 लाख लोग इंडिया में जानते हैं जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं। नाउ इफ ही इज कन्विंस्ड एंड इफ ही जॉइंस माय टीम, then there would be a big game changer, he'll be a big game changer for me, right? So basically उसको मैं उस लाइन पे रख दूं, एक लाइन में अगर, तो मेरा वो एक लाइन तो मुझे देखना नहीं पड़ेगा। ओके, सो ही कैन बी अ गेम चेंजर। नाउ अ क्वेश्चन, अगर स्नेह ने ये कहा था आपको कि अगले मंडे को मिलेंगे, एंड लेट मी थिंक ओवर इट, आप अगले मंडे को मुझे मिलना या बात करना, फोन करना, व्हाट इज दैट माइंड। अब वो मंडे की सुबह आ रही है, एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, सबसे पहले ऑफिस जाकर क्या करना चाहिए? नहीं, ऑफिस जाकर पहले देखो ऐसा करना चाहिए कि ऑफिस में गए, हाय कैसे हो, गुड मॉर्निंग, अरे राजेंद्र सर सब ठीक है, गुड। फिर टेबल पर बैठे, अरे राजू चाय लाना जरा यार, थोड़ा मूड सेट कर यार, चाय वाय पिला। मैं ले वो व्हाट्सएप आया, क्या बात है यार, व्हाट्सएप देख लेते, अरे मस्त जोक भेजा, इसको फॉरवर्ड करता हूँ मैं। अरे ईमेल, कौन सा ईमेल है ऐसे, वही करना चाहिए, सीधी बात है ना। Put on the Guys, don't you think so? This is the shit we do. साला सुबह उठ करके
when you are in full of energy, bloody what we do is WhatsApp. एक जमाने में इंडिया में लोग भगवान के दर्शन से दिन की शुरुआत करते थे, माता पिता के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करते थे, आज व्हाट्सएप के दर्शन से करते हैं। और उनका जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव एबिलिटी है वो पता है किधर इस्तेमाल होता है? सुबह सुबह। क्रिएटिव एबिलिटी क्या पहनो आज? ये टी शर्ट के साथ ये पहन जाएगा, नहीं ये दूसरा देखो, ये हाँ ये ठीक रहेगा, ये ट्राई करो, सब बराबर। और उस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को जो सुबह सुबह पीक पर है, उससे सबसे पहला डिसीजन पता है क्या लेना होता है? सबसे पहला डिसीजन सुबह का, जब बीवी आके पूछती है आज क्या बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक इन लाइफ, क्योंकि अगर ये डिसीजन लिया तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग यू नीड टू आंसर मैन एवरी मॉर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। अगर आप में से किसी ने सुना हुआ है कि मार्क जुकरबर्ग एवरी मॉर्निंग एक ही कलर का टी शर्ट और एक ही कलर का पैंट जिसके 10 पैर है उसके पास, बस वही पहन करके निकल जाता है ऑफिस में। डू यू नो व्हाई? क्योंकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को और अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को इस फालतू चीज में वेस्ट नहीं करना चाहता। Again, 4 years back when I got married, my wife is here today. मैं उसको दूसरे दिन पे अपने घर के किचन में लेकर गया। शिवांगी, मम्मी पापा को भी बुलाया और कहा शिवांगी दिस इज अवर किचन, इधर ब्रेकफास्ट बनता है, लंच बनता है, डिनर बनता है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें ऐसी ऐसी जगहों पर रखी हुई है, दिस इज अवर स्टोर हाउस, दिस इज अवर स्टफ, सो दिस इज अवर किचन। इस किचन में तुम्हें कभी नहीं आना है। उसका रीजन है, सुनो, यहाँ पर जितने भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। शादी करे हो या फिर एक सर्वेंट को घर लेकर आए हो, मुझे तो आज दिन तक समझ नहीं आता। एंड ऑल दी हस्बैंड, उनसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ, शादी करके किसी को घर लेकर आए हो या एक सर्वेंट को लेकर आए हो? साला जो काम 15,000 का आदमी कर सकता है उसके लिए शादी कर रहे हो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक ऑनेस्टली। एक साइड कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसके लिए? सिर्फ किचन संभालने के लिए? तो भाई वो तो 15,000 का काम है। गाइस, आई एम नॉट अपोजिंग एनीवन हु इज अ ग्रेट हाउस मेकर। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो काम इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो। मुझे ये पता था दैट शिवांगी हैड अ बिगर पोटेंशियल एंड शी इज हियर इन टर्म्स ऑफ दिस सोल इज हियर टू चेंज लाइफ। ये मुझे पहले से पता था और इसलिए मैं उसे किचन तक सीमित नहीं करना चाहता था। एंड दैट्स व्हेयर आई शेयर्ड कि तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यू कैन ऑलवेज सुपरवाइज इट, ओके, यू कैन ऑलवेज गाइड इट, ओके, बट द पॉइंट इज कि यार जो 15,000 का आदमी काम कर सकता है और जरूरत पड़े दूसरा तीसरा काम भी घर का होगा, वो दूसरा 15,000 का आदमी कर सकता है। तुम 30,000 में जो काम करवा सकते हो उसके लिए जो उसका 3 लाख का या 30 लाख का पोटेंशियल है उसे मैं क्यों बर्बाद करूं? And I did not want it that. So that's what I did. So मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपने आप को ऐसे बहुत सारे कामों में उलझा देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड वी आर स्टक विद दोस थिंग्स कि जो हमारे पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है। So guys, coming back, I'm not saying और underestimating कहीं पर भी जितने भी हाउसवाइफ्स है या कोई भी अगर हाउस मेकर है या कोई हाउस आर्टिस्ट है जिसको अच्छा लगता है वो काम करना, it's absolutely fine. Like my mother is a house artist and she is good with that, I'm good with that, okay? But I'm talking about here in a different sense altogether. ठीक है? So यहाँ पर जितने भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स है, you people are doing a great job. जितने भी हस्बैंड्स हैं जिन्होंने अपने फैमिली और अपने वाइफ्स को या बेटियों को इन्वॉल्व किया है कहीं पर भी बिजनेस में, I'm really proud of you guys. I'm really proud of you guys. देखो, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करने से कुछ नहीं होता, शुरुआत घर से होती है। ठीक है? तो अगर किसी के पास पोटेंशियल है और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ग्रेट, थोड़ा मोटिवेट भी कीजिए अगर वो इंटरेस्ट ना भी ले रहे हो। एंड अल्टीमेटली एक दो बार ट्राई करके उनको अच्छा ना लग रहा हो तब की बात अलग है। शी कैन ऑलवेज बी हैप्पी विद व्हाट शी इज डूइंग, बट एक मौका दीजिए।
ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हिच आई वाज डिलिवरिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो वो चंक कौन सा है पूरे दिन का, उसको निकालो, ना कि सुबह व्हाट्सएप से दिन की शुरुआत करनी है, ना कि वो चाय पीने से दिन की शुरुआत करनी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू नो, ना कि वो कपड़ों के डिसीजंस में फंस जाओ, ना कि आज बनाना क्या है। सो जब मैं शिवांगी को किचन के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दिया कि भाई तुमको ये नहीं करना है, अब क्या हुआ सीन पता है? हर सुबह वो जो मेड है, यानी कि जो शेफ है मेरे घर का, वो शिवांगी को पूछने लगा, मैडम आज खाने में क्या बनाऊं? और उसके बाद शिवांगी मुझे पूछने लगी कि इसने आज आप क्या खाओगे? घुमा फिरा के मैं तो उधर ही रह गया। तो व्हाट वी डिड इन आवर हाउस वाज एक 7 दिन का लंच और डिनर का पूरा मेनू ही बना दिया कि उस आदमी को पूछने ही ना आना पड़े, भाई जो लिखा है लिस्ट में वो बना दे। और 3 और ऑप्शन एक्स्ट्रा भी दे दिए कि कोई दिन वो सब्जी ना हो तो ये ऑप्शन वाली ले ले। सुबह उठकर डिसीजन मेकिंग, आज क्या बनाऊं? एनीवेज, द पॉइंट इज वेरी सिंपल। सुबह उठे हो, एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करो 2 घंटे के लिए, मतलब कि तैयार होना, XYZ थिंग्स, और फिक्स शेड्यूल के बाद जो पहला काम करना है वो क्या होगा? ईट दैट फ्रॉग। जो सबसे प्रोडक्टिव, जो सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड काम है, बस जाके पहले वो ही खत्म करो। अब वो किसी के लिए वो एक ऑफिस का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट मैटर चल रहा है, आप उसको डिले कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर उसको आपने रिजॉल्व कर दिया, वो 2 लोगों के बीच का जो इश्यू उसको रिजॉल्व कर लिया, तो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, काम आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जाके पहले वो खत्म करो। आपको ये पता है एक बहुत बड़ा मैटर है और वो है कलेक्शन। किसी के पास 2 लाख रुपया अटका हुआ है, अगर उसको फॉलो अप मैंने कर लिया और अगर उसका पैसा आ गया तो मेरा जो काम अटका हुआ है वो आगे बढ़ना शुरू होगा। तो पहले जाके ऑफिस में किसको फोन करना है? जिससे पास से वो पैसा कलेक्ट करना है, उसको डिले मत करो। सी व्हाट वी डू इज, जो वो मुश्किल वाला काम है, जो हमें रिजल्ट दे सकता है ना, उसको हम डिले करते हैं। बोले चाय पी लूं बाद में, अरे दोपहर को कर लूंगा, अरे यार वो मीटिंग, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं मंडे सुबह स्नेह देसाई थे। सो मंडे सुबह अगर मैंने टाइम दिया था, एंड इफ आई कैन बी द गेम चेंजर फॉर योर बिजनेस, तो सबसे पहला मीटिंग किसके साथ करना चाहिए? एब्सोल्युटली। Why you need to order a tea for that and why you need to, you know, forward the WhatsApp message for that? I don't understand this. सबसे पहले वो सारी एनर्जी फोकस जो सुबह आप उस पोटेंशियल से जो निकले हुए उसको पूरा यूज कर दो उसी मीटिंग में। एंड बिलीव मी, उस सुबह आपने अपनी टीम के स्नेह देसाई को कन्विंस कर दिया ना, उस पूरे दिन में आप कुछ और नहीं करोगे चलेगा। That's called 4-hour work week। अगर उस दिन स्नेह देसाई का क्लोजिंग आप 1 घंटे के अंदर लेकर आए और बाकी के 3 घंटे के दौरान, उस हफ्ते के दौरान स्नेह देसाई को आपने ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दे दिया, खत्म भैया। 4-hour वर्क वीक इसको बोलते हैं। That's the A job। दूसरा आता है बी क्या होगा? कभी कभार टीम ट्रेनिंग्स हो सकती है, टीम मीटिंग्स हो सकती है, यू नो, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट। तो शुरुआत आप हमेशा दिन की करोगे ए जॉब से, फिर सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क को लोगे, फिर नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट में हो सकते हैं ईमेल के रिप्लाई, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट में फ्लाइट के बुकिंग हो सकते हैं। हम लोग है ना कभी कभार सुबह पहले जाकर के हमारे ट्रैवल के फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, और सच है इंपॉर्टेंट क्या 200 रुपया प्राइस ना बढ़ जाए, इसलिए सुबह जल्दी करना चाहिए। भाई वो एक ऐसा काम है जो कोई भी और कर लेगा, अरे 500 ज्यादा ही खर्च कर लेगा, मतलब हाँ उसको तो गधा है ना, उसको पता नहीं चलता, इसलिए सारा बुकिंग हम ही कराते हैं। 500 रुपया बचाने के लिए हम ही कराते हैं। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो बुकिंग में या वो शॉपिंग में आधा घंटा अपना जा रहा है, उसके बजाय अगर एक क्लाइंट को मिलनी होता आधे घंटे में, तो डू यू नो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ योर लाइफ टाइम कस्टमर, लाइक लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ योर कस्टमर। मतलब एक आदमी को जब आप मेंबर बनाते हैं और अपनी टीम में जोड़ते हैं, डू यू नो द वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर, यू नो द लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर। आप जिस मॉडल में हो ना, उस मॉडल के अंदर उसकी गिनती करना पॉसिबल। अनलिमिटेड वैल्यू रखता है हर एक कस्टमर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वो घोड़ा कितना दौड़ेगा पता ही नहीं है। ओके, सो यू नो मेक श्योर कि आप मैक्सिमम ए वाले जॉब में रहें। बी बाद में देख लेंगे, और सी ठीक है, चाहे सी के अंदर और क्या क्या आ सकता है पता है? लंच, डिनर, नहाना, तैयार होना।
भाई कोई मीटिंग में अगर पहुंचना जरूरी है ना, उस दिन तैयार होके नहीं जाओगे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले को पता नहीं लगता है तुम नहा के आए या नहीं आए। आज सुबह की बात है, यू नो ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल हमारा डिस्कशन चल रहा था, स्नेह तुम्हें क्या लगता है इवेंट टाइम पर शुरू होगा सुबह? ये सवाल मुझसे मेरे फैमिली के द्वारा पूछा गया। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं होने वाला। फिर तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? उन्होंने रिटर्न में पूछा। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, या तो हम लेट हो सकते हैं या तो हम अर्ली हो सकते हैं, क्योंकि दो में से एक ही ऑप्शन होता है। ऑन टाइम जैसा कोई दुनिया में एक मिथ है, मिथ गलत फहमी होता ही नहीं। या तो हम लेट हो सकते हैं या तो अर्ली हो सकते हैं। एंड आई ऑलवेज चूज टू बी अर्ली, दैट्स माय एथिक। आप लोग आए थे इधर, गिन के 3 लोग बैठे थे, तब आकर के मैंने लैपटॉप भी सेट कर लिया, प्रेजेंटेशन भी चेक कर लिया, माइक भी चेक कर लिया। Now I am sharing this because I want to make you understand कि when it comes to your profession and when it comes to your growth, तो जो A काम आपको करना है, for example the job I'm doing here, you know, standing on the stage, this is the A job I'm here for। मेरा पूरा गोवा का ट्रिप इसी पर्पस से ऑर्गेनाइज हुआ, ठीक है, this is the A job। Bloody how can be late for this job? I don't know about you guys, आप लोग क्या कर रहे थे कल रात को और सुबह क्यों नहीं आए थे, I don't know। पर मुझे आप लोगों को देख करके बस वो दिन याद आ रहा है, भाग मिल्खा भाग मूवी देखा है किसी ने? वो ऑस्ट्रेलिया गया था, हाँ, उधर इतना बड़ा रेस दौड़ने के लिए गया, गर्लफ्रेंड बनाया, रात को दारू पिया और फिर सुबह लेट आया, और जब कोच ने पूछा कहाँ थे, सच बोला सर गलती हो गई, कल दोस्तों के साथ दारू पी लिया था इसलिए लेट हो गया। तब कोच ने एक ही सवाल पूछा था, ना डांटा ना थप्पड़ लगाई, कुछ नहीं, बस एक ही सवाल, यहाँ क्या करने आया? दारू पीने आया या दौड़ने के लिए? बस और कुछ नहीं पूछा था, इतना ही, और कुछ डाटा भी नहीं उसके बाद। बस उसका जवाब वो अपने आप को दे देना, बस उतना ही काफी था। एंड आई होप यू रिमेंबर इन दैट मूवी, एंड इट्स अ रियल स्टोरी राइट, इन दैट मूवी उसके बाद वो रेस में बहुत बुरा परफॉर्म करता है, और वो बुरे परफॉर्मेंस के बाद जब उसने अपने आप को जवाब ये दे दिया था कि मैं दारू पीने तो नहीं आया था, दौड़ने के लिए आया था, वो जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड को मिलकर के बोल देता है कि भाई वी ब्रेकअप, मैं अलग हो रहा हूँ, तुम में कोई दोष नहीं है, मेरे में दोष है, मैं कैसे जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरे जो गोल्स हैं उसमें तुम सेट नहीं हो पाओगे, मैं वो टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। कुछ लोग मन में सोच रहे सर अच्छा आइडिया, बीवी को बता देता हूँ। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो जो अनप्रोडक्टिव थिंग्स है उसको छोड़ने की जरूरत है, तब जाके ग्रोथ होगा बॉस। इफ यू आर नॉट विनिंग योर नाइट, यू कैन नॉट विन योर मॉर्निंग, एंड इफ यू कैन नॉट विन योर मॉर्निंग, आप अपना दिन कभी नहीं जीत पाओगे। और जो आदमी अपना दिन हार गया, और वो हर दिन अगर अपना दिन हारते जाएगा, वो जिंदगी हार जाएगा। A, B and C. I was super excited today morning. I woke up at 6:30. Do you know why? Because this was my A job. आपका पता नहीं आप लोग गोवा क्यों आए हो? नहीं सर, वो तो सी है, 9 बजे आना, वो तो सी वाली चीज है। ए जॉब तो रात को ही ना। One more, D, A, B, C, D. D is something delicate. कुछ ऐसी चीजें जो हमें करने की जरूरत नहीं होती, फ्री हो जाओ उससे, right? And one more, E, eliminate. कुछ फालतू काम है, निकालो, डिलीट करो। और वो फालतू काम कम करने के लिए कुछ लोगों को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट करने की जरूरत है। फिजूल में वही व्हाट्सएप मैसेजेस, फॉरवर्ड्स, वीडियोस, भाई चौथी बार वीडियो आ रहा है वो, और एक आध ग्रुप में जिसमें हम एक्टिव भी नहीं है, उधर सुबह से शाम कोई चैट कर रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, और शाम को 99 नोटिफिकेशंस, और हम लोग अंदर जाते हैं, बस बाहर आ जाते हैं कि 99 नोटिफिकेशन चले जाए, हम पढ़ते तक नहीं है क्या हुआ उस ग्रुप में, क्यों हो फिर?
See, I can understand that nowadays socializing, any forms of groups and social media can help you market lot of things. Okay? So उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो फालतू चीजें हैं उससे निकलना शुरू करो, अदरवाइज आप वही चीजों में रहोगे। एलिमिनेट करो कुछ चीजों को। कुछ लोगों को अपने मोबाइल फोन से ना एक आध वीडियो गेम डिलीट करने की जरूरत है। आई हैड अ पार्टिसिपेंट, मुझे कहता है सर कैंडी क्रश के 1300 लेवल क्रॉस किए, उसके बाद आगे लेवल्स नहीं थे तो कंपनी को ईमेल डाला। जबरदस्त, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया भाई तूने। क्या कहो इससे मैं बताऊं। कुछ लोग नेटफ्लिक्स अचीवर होते हैं, बोले सर सब वेब सीरीज देख डाली, वेरी गुड। ये लोग पता नहीं रियल लाइफ में क्या करने वाले हैं, ठीक है, सिवाय कि अपने बाप दादा बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट when it comes to taking control of your life, that's how you use your 24 hours. A, B, C, D and E. मैंने अपनी जिंदगी से हर महीने, आज की तारीख में भी हर महीने कुछ टास्क को डी पर निकाल करके किसी को दिया है और कुछ टास्क को ई यानी कि एलिमिनेट आज भी हर महीने मैं करता हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी में टीवी, मोबाइल फोन, वीडियो गेम, सोशल मीडिया नहीं है, तब मैं ये कह रहा हूँ कि हर महीने तो भी कुछ नई बुरी आदत मेरे ध्यान में आ जाती है। Because we are humans, we cannot be robots, right? But improvement हर महीने हर दिन possible हो सकती है। I had the opportunity in 2015 to go and train NASA. NASA का नाम सभी ने सुना होगा। So NASA में मेरा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ था। वहाँ पर मैंने बहुत कुछ उन लोगों को सिखाया, बट इक्वली मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज़ सीखी थी। वो लोग मुझसे कहते हैं स्नेह, हम लोग जब एक रॉकेट लॉन्च करते हैं, उस रॉकेट को जब हमने लॉन्च किया तब अगर उसका एंगल 1 डिग्री हम चेंज कर लेते हैं, कितना 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री चेंज कर लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा शिफ्ट होता है। मतलब कि जो 1 डिग्री जमीन पर चेंज किया गया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब वो अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचेगा हजारों लाखों किलोमीटर और लाइट ईयर्स के बाद, तो उसका एंगल कितना चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इट्स काइंड ऑफ अ पेंडुलम थिंग। ओके, सो अब ये बताइए मुझे कि अगर आप अपने आप को हर दिन 1% इंप्रूव करते हैं, एवरीडे 1%, 1 साल के बाद कितना होगा? 365%। और जब कोई 1 साल के बाद आपको देखता है, मिलता है, मिलकर कहता है यार तू बदल गया है, क्या कहता है? तू बदल गया है। और अभी तक लोग क्या कह रहे थे? यार तू तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, और उसे भी हम तारीफ समझते हैं। See, each and every day, you know, we had this opportunity कि हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते थे, पर हम कर क्या रहे हैं? और ये इसी से संभव हो सकता है। और जब आपको अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना है तो मैं आपको ये बता दूं, व्हाट यू नीड इज अ मॉर्निंग रिचुअल। सी, कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए? रेज योर हैंड गाइस, कम ऑन। कोरोना ने सिखा दिया एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ओके, कितने लोग बिलीव करते हैं मेडिटेशन करना चाहिए? या ओके, ग्रेट। कितने लोग बिलीव करते हैं फैमिली को टाइम देना चाहिए? ऑसम। कितने लोग बिलीव करते हैं अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए? वाह। सो एवरीबडी नोज कि ये सब करना चाहिए, बट सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है आपकी लाइफ का? ये बता दो, टाइम नहीं है। यार वी डोंट हैव टाइम, राइट? सर मतलब मैं सोचता हूँ हर शाम को जिम जाऊंगा, सर मैं सोचता हूँ ये कर लूंगा, बट सर होता नहीं। एक बार ऑफिस चले जाना फिर पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चले जाता है। राइट, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सुबह जो भी टाइम पे उठ रहा हूँ, बस 1 घंटा जल्दी उठ जाओ, सब हो जाएगा। उस 1 घंटे में 30 मिनट्स वॉकिंग या जिमिंग भी हो जाएगा, 15 मिनट मेडिटेशन भी हो जाएगा, 15 मिनट का रीडिंग भी हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा जल्दी उठने से यू कैन चेंज योर होल लाइफ। और इसीलिए जो सुपर अचीवर्स है, देख लो ये लोग कितने बजे उठते हैं। दलाई लामा या स्वामी रामदेव बाबा, दे वेक अप एट 3 o'clock in the morning, या महात्मा गांधी या कलाम साहब 4 बजे उठा करते थे, या पीवी सिंधु या ड्वेन जॉनसन मॉर्निंग 4 o'clock, या सुशील कुमार या टिम कुक दी सीईओ ऑफ एप्पल, सुबह 4:30 बजे उठते हैं, या फिर बॉब आइगर दी सीईओ ऑफ डिज्नी, या फिर अमिताभ जी या नरेंद्र मोदी जी, दे वेक अप एट मॉर्निंग 5 o'clock, या फिर रजनीकांत एंड अलॉन्ग विद दैट अक्षय कुमार या रिचर्ड ब्रांसन, विराट कोहली या जैक मा दी ओनर ऑफ अली बाबा, या फिर आप इनको भी जानते हैं मार्क जुकरबर्ग या रतन टाटा दी ग्रेट, या फिर स्टारबक्स के सीईओ मिस्टर हॉवर्ड या सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, ये सारे अर्ली राइजर्स हैं। उनका रीजन पता है क्या है? क्योंकि बोले शाम को मालूम नहीं रहता कि घर वापस कब आएंगे, तो 1-2 घंटा जल्दी उठ करके एक्सरसाइज, मेडिटेशन, रीडिंग खत्म कर लो कि बाद में अगर जल्दी वापस नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन व्हाट दे डू इज मॉर्निंग में भी वो अपने फैमिली को टाइम देते हैं, और इवनिंग में अगर टाइम बच गया तो भी देते हैं।
Guys, if you want to utilize the best in a way in your 24 hours, what you need is कि आप अभी जिस टाइम पर उठ रहे हो बस उसको आधे से 1 घंटा जल्दी कर दो और कुछ ऐसी हैबिट्स को सुबह सुबह इंक्लूड कर दो जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है. एंड बिलीव मी, यू पीपल आर इनटू वेलनेस इंडस्ट्री. अगर आप ही जॉगिंग नहीं कर रहे और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपना रिपोर्ट तो पढ़ा है ना, उसमें भी लिखा है कौन सी एक्सरसाइज करना. Knowledge not used is garbage. So start doing it. करना जरूरी है. If you won't be an example, तो आप किसी और को एग्जाम्पल कैसे देंगे? बताइए. Actually, again call Shivangi. My wife Shivangi runs something called Fit Bharat Mission. आप गूगल करोगे या सोशल मीडिया पे जाओगे तो उन्होंने पिछले साल जनवरी महीने में फिट भारत मिशन की शुरुआत की. 1 साल 3 महीना हुआ है. 1 साल 3 महीने के अंदर शी हैज गॉट 2 लाख फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, जस्ट ऑन फेसबुक. इंस्टाग्राम यूट्यूब अलग है. सो फिट भारत मिशन में उसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि वो इंडिया को फिट करना चाहती है. ठीक है. अब जब वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, सो आई एम जस्ट कॉलिंग हर बिकॉज मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ. ठीक है. आप सभी जब भी कोई भी प्रोस्पेक्ट्स के सामने जाते हैं और खास करके अगर वेलनेस या हेल्थ की बात कर रहे हैं, सी व्हाट मैटर्स इज कि आपका फिटनेस और आपकी हेल्थ कैसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एन एग्जांपल. यू हैव टू बी एन एग्जांपल. अगर आप खुद एक एग्जांपल नहीं है तो आप कभी भी सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकते. कैसी बात होगी कि मैं इधर ऑटो रिक्शा में बैठ कर रहूं और किराए के मकान में रहूं और फिर आकर के आपको ये कहूं कि आप मेरे प्रोग्राम को अटेंड कीजिए, मैं आपको सक्सेसफुल बनाऊंगा. कोई लॉजिक नहीं है इसका, राइट? So that's where when she is working into the health sector, तो वो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है. क्यों कर रही है उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल थोड़ी देर में शेयर करूं जब वो आ जाएगी तब. बट मूविंग ऑन, राइट नाउ दिस पीपल आर अर्ली राइजर्स एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग हियर कि शिवांगी इज आल्सो वन ऑफ द अर्ली राइजर्स और उसका हर सुबह का एक शेड्यूल फिक्स रहता है कि वो अपने बॉडी के लिए वक्त निकालती है. ऑलराइट. ओह शी इज देयर. सो शिवांगी, वुड यू माइंड, मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं. एक बात, She is not in the right dress code जो मैं उनको करवाने वाला हूँ और उनको पता नहीं है कि मैं उनको क्या करवाने वाला हूँ. But जैसे मैंने शेयर किया फिट भारत, alright, she is a nutritionist, she is a health coach, she is a Zumba trainer, she is a yoga teacher. बहुत सारे credentials उनके पास है. But मैं एक छोटा सा टास्क उनको दे रहा हूँ अभी, right now also. मुश्किल वाला ही दे रहा हूँ. right now also she is conducting her classes. उनके फेस योगा के नाम से क्लासेस अभी भी चल रहे हैं रात को 9 बजे every day and right now वो होटल से कंडक्ट कर रहे हैं because we have online sessions. बट उनको मैं एक टास्क दे रहा हूँ. आप सभी पुशअप्स करते हो? कितने पुशअप मार सकते हो? मतलब कि अगर हम एक मेन की बात करें, पहले तो फीमेल्स है ना, कभी भी मेन की तरह पुशअप्स नहीं मारते. वो घुटनों को जमीन पे रख लेंगे या बेबी पुशअप्स मारते हैं, करेक्ट? तो हम शिवांगी से कहेंगे कि उनको पुशअप्स मारने हैं और वो ओरिजिनल मेन पुशअप्स जो रहते हैं वो मारने हैं. ठीक है. और नॉर्मली मर्द ही अगर यहाँ पर कोई मारे, अगर मैं आपको ही बुला दूं तो एक एवरेज 10, 15, 20 काउंट तो हो सकते हैं कि अपने लिए लिमिटेड हो सकते हैं. ओके. एंड आई एम श्योर कि 15 से 20 तो वो भी मार लेंगे. अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इफ शी इज द एग्जाम्पल, शी हैज टू बी द रोल मॉडल. राइट. और तभी जाकर वो फिट भारत को रन कर सकती है, किसी को ये बोल सकती है कि आपको फिट होना है. ट्राई करें. ओके. सो अ टास्क फॉर हर. ठीक है. यू आर नॉट ड्रेस्ड अप बट द वे यू फील कंफर्टेबल आप कोई भी चूज कर सकते हैं. और आप लोगों को साथ में काउंट करना है. तैयार हो? ठीक है. रेडी? थोड़ा चीयर भी कर लेना. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50.
अब राइट नाउ शी वाज नॉट वार्म्ड अप या स्ट्रेचिंग वेचिंग हुआ नहीं था. हो सकता है कि अगर वो तैयार है तो शायद और बेहतर तरीके से भी कर सके और शायद ज़्यादा काउंट्स भी कर सके. एंड प्रोबेबली हम लोगों ने हेवी ब्रेकफास्ट लिया था 1-1.5 घंटे पहले. सो मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि अब अगर ये किसी के सामने वेलनेस की बात करे तो दैट मेक्स सेंस. मैं उससे बढ़कर कुछ नहीं कहना चाहता था. इट वाज नॉट शो बूटिंग. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि आप भी यारों जब किसी के सामने जा रहे हो यू आर कैरिंग द लेबल ऑफ अ कंपनी कॉल्ड वेलोसिटी बूस्टर. और अगर वो लेबल लगा कर जाना है तो अपनी हेल्थ को हर दिन 1 घंटा देना पड़ेगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. लेट्स राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. सो नंबर 5 एंड दैट इज प्रॉक्सिमिटी. एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ. प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि आपके आजू बाजू कौन और कैसे लोग हैं. और जब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको पता है आपकी ग्रोथ या आपका डाउनफॉल डिसाइड होगा आप पहले जिन 5 लोगों के बीच में जिंदगी जीते हो उसके ऊपर. मतलब कि आपको ना पता हो तो बता दो. जिम रॉन ने कभी कहा था कि आप जो पहले 5 लोगों के बीच में जी रहे हो वही है जो आपकी जिंदगी को डिजाइन करेंगे. यानी कि आप जिन लोगों के बीच में हो वो लोग जो करेंगे आप वही करोगे. वो लोग जैसी बातें कर रहे हैं आप वही बातें करेंगे. वो लोग अगर ज्यादा खाना पीने में बिलीव करते हैं आप भी खाने पीने में बिलीव करोगे. वो लोग जो सोचते हैं आप वही सोचोगे. उनकी जो मान्यताएं होंगी आपकी भी वही मान्यताएं होंगी. वो लोग जो पढ़ेंगे आप वही पढ़ोगे. वो लोग जो देखेंगे आप वही देखोगे. मतलब आपने कभी एग्जाम्पल देखा होगा आपके ग्रुप में अपने दोस्तों में सभी ने वो मिर्जापुर नाम का वेब सीरीज देख लिया और सभी उसी की बातें कर रहे हैं. अब उस ग्रुप में रहते हुए क्या होगा पता है आपको भी मिर्जापुर देखना पड़ेगा क्योंकि आप वो बात नहीं कर पा रहे ना जो सभी कर रहे हैं. समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. अभी आपके दोस्तों में सभी है जो हर शाम को दारू पीते हैं. अब उनके साथ रहते हुए आप क्या करोगे ये बताओ. पानी तो नहीं पियोगे साथ में रहकर. अब 2 ही ऑप्शन है. या तो दारू पीना पड़ेगा या तो धीरे धीरे उनकी कंपनी से बाहर निकलना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. मतलब कि आप जिनके बीच में रहते हो वो लोग कहाँ कहाँ आपको इफेक्ट कर रही है. देखो उनकी इफेक्ट कैसी आ रही है आपकी लाइफ के ऊपर. उनके लाइफ के जितने गोल्स होंगे आपके उतने गोल्स. अगर वो लोग सुखी है बोले यार नहीं ठीक है अच्छी सैलरी मिल रही है अच्छी बीवी है हम तो हमारे तो उतना काफी है. आपका लाइफ का गोल भी उतना ही बन जाएगा. अगर उनकी लाइफ में कोई बड़ा पर्पस नहीं आपकी लाइफ में भी कोई बड़ा पर्पस नहीं होगा. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि वो लोग जो कमाएंगे आप उतना ही कमाने वाले हो. दैट्स द बॉटम लाइन. तो आपके आजू बाजू पहले 4 से 5 कौन है आपका इनर सर्कल कैसा है चेक करो. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फैमिली. फैमिली को चेंज नहीं किया जा सकता. फैमिली से दूर नहीं हो सकते. बट दोस्त या बिजनेस पार्टनर या जिनके साथ ज्यादा उठना बैठना होता है उनको तो जरूर चेंज किया जा सकता है. एंड व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस काफी बार लोग मुझसे कहते हैं नहीं सर हम लोग सब कुछ समझ गए हैं आपकी बातें समझ कर हम काम करेंगे. हमारे जितने दोस्त हैं ना उनको बदल देंगे उनको सुधार देंगे. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल? मैं समझा तो आपने मेरी बातें सुन ली. अभी सारी बातें सुन करके आज रात को जब आप पार्टी वापस करेंगे तब 10 बजे सभी तो पार्टी चालू हो रही थी और 10 बजे अचानक से आप बोल रहे मैं जा रहा हूँ. क्या हो गया क्यों जा रहा है? अरे वो आज जो सर ने बातें की कल सुबह मेरे को 6 बजे उठना है एक्सरसाइज करना है. अब बताओ वो लोग क्या आपको करने देंगे? नहीं बिल्कुल नहीं. अरे ठीक है यार क्या कर लेगा एक्सरसाइज करके 2 दिन के बाद कर लेना. अभी एंजॉय कर हमारे साथ. तो जानिए क्योंकि जो खुद नहीं सुधरना चाहते वो आपको सुधरने नहीं देंगे. अब तो ताली बजाए कैसे क्योंकि वो बाजू में ही बैठे. तो आप गधों को घोड़ा नहीं बना सकते. समझ रहे हो? एक रूल याद रखो जिंदगी में. आपके जितने दोस्त हैं आप सबको सुधार नहीं पाओगे क्योंकि जब गधों की तादाद ज्यादा होती है ना उनको आप घोड़ा नहीं बना सकते. वो लोग आपको गधा बना देते हैं. और इसीलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ आप किस चीजों से भरे हुए मेरे को बताओ. आपके अंदर क्या है? लेजीनेस है? आपके अंदर नेगेटिविटी है? आपके अंदर कोई एक्सक्यूज है? कि आपके अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन है? आप टाइम वेस्ट करते हो प्रोक्रास्टिनेट करते हो चीजों को या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पैसों की कमी आ रही है स्ट्रगल कर रहे हो या कोई थोड़े हार्डशिप से गुजर चुके हो या कोई स्किल की कमी है. इफ इसमें से एक चीज भी आपके अंदर अप्लाई होती है तो मैं आपसे पूछूं आपके आजू बाजू कौन है? समझ आ रहा है? मेरे आसपास मैं आपको बता दूं कोई ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर आलस नजर आएगी नेगेटिविटी नजर आएगी क्योंकि वो लंबे टाइम तक मेरे साथ टिक ही नहीं पाएगा. पॉसिबल ही नहीं है. सो अगर अपने अंदर कोई भी खामियां है इसका मतलब ये है हम ऐसे कोई इंसान के कांटेक्ट में है जिसके कांटेक्ट में रहते हुए ये सब हो रहा है अपनी लाइफ में. यू हैव टू चेंज योर इनर सर्कल.
सी ये कहानी आप सभी जानते हैं, कहावत सुनी हुई है, याद है ना वो सेब वाला, बिगड़े हुए सेब, राइट? संगत का असर होता है। हमारे माँ बाप हमें बरसों से सिखाते थे। अगर ये समझ आ रहा है तो अब आपको किन लोगों के बीच में आपको, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रहना चाहिए। किन लोगों के बीच में? ऐसे लोग जो सीखना पसंद करें, ऐसे लोग जो ग्रो करना पसंद करें, जो अपने आप को अपडेट करना पसंद करते हैं, जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, या जो पॉजिटिव थिंकर्स है, या जो अपने आजू बाजू के लोगों को पुश करते हैं। मुझे बात बताओ, अगर आप एक ऐसे आदमी के साथ हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे जैसा आदमी है, स्टैंसर है, ऐसे लोग हैं कि जो अपने आजू बाजू के लोगों को हमेशा पुश करते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे क्या होगा? आप बेहतर बनते जाओगे। कॉमन सेंस की बात है, राइट? ओके, उसी के साथ ऐसे लोगों के बीच में रहो जो गोल्स अचीव कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके बड़े टारगेट्स हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहो जिन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस किया है। जिस आदमी ने प्रॉब्लम्स को फेस किया है, जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा आप उसके साथ रहोगे ना, वो हमेशा आपको रास्ता निकाल के दे सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रेट कम्युनिकेटर्स होते हैं, ग्रेट कम्युनिकेटर्स, बिकॉज वो आपको कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। गाइस, आप अगर इन लोगों के बीच में रहोगे, ऐसी कोई भी क्वालिटी वाले लोग, तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, आपको भी ग्रोथ देंगे। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ वीडियोस देखना और बुक्स पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सही में बेहतर इंसान बनाना चाहते हो और अल्टीमेटली ग्रोथ की ओर लेकर जाना चाहते हो, तो सिर्फ वीडियोस और बुक्स काफी नहीं है। क्योंकि सच बताओ, स्विमिंग अगर सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, और उस इंसान के साथ उतरना पड़ेगा जो स्विमिंग जानता है। सो अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो सिर्फ लेक्चर सुन के नहीं होगा, सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज के पूरे सेशन का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज कि आपको ऐसा कोई रोल मॉडल अपनी पूरी टीम में से निकालना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जिसके पास वो क्वालिटी है जो क्वालिटी से आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और आपको उस इंसान के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, और तभी जाकर आपको ग्रोथ मिल सकता है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। अ क्वेश्चन, व्हाट आर यू लैकिंग विद? कौन सी कमी है आपके अंदर? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, ऐसे इंसान को खोज लो जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, उसके साथ रहो। अगर आपके अंदर फोकस की कमी है, जो फोकस्ड है उसके साथ रहना शुरू करो। आपके पास कम्युनिकेशन की कमी है तो अच्छे कम्युनिकेटर के साथ रहना शुरू करो। सेल्स या क्लोजिंग में आप पीछे है तो ऐसे आदमी को खोज लो जो सेल्स और क्लोजिंग में माहिर है। या फिर अगर आपको किसी को इन्वाइट करना नहीं आता, अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता, तो उस आदमी को खोज लो जो अच्छी अपॉइंटमेंट लेना जानता है। या फिर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना नहीं आता तो उसको खोज लो जो प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने में माहिर है। या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो सकता है, फॉलोअप्स हो सकते हैं, या लीडरशिप हो सकता है। अगर आपके अंदर लीडरशिप की कमी है तो अच्छे लीडर को खोज लो जिसके साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर लीडरशिप आना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक सवाल, कोई आपको अपने साथ रखेगा क्यों? और वो भी जो सफल है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो अच्छा काम कर रहा है, वो हमारे जैसे बेवकूफ को अपने साथ रखे क्यों? आपकी बात नहीं कर, अपनी बात कर। थिंक, क्योंकि एक्चुअली बताओ, अगर आप मेरे को बोलोगे सर मैं आपकी तरह ट्रेनर बनना चाहता हूँ, सर मुझे अपने साथ रखो, मैं पागल? अब मुझे स्लो डाउन कर दोगे, समझ आ रहा है? क्योंकि कोई भी नया बंदा होगा तो वो हमारी स्पीड कम कर देता है। तो इसीलिए मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, कोई भी एक्सपर्ट्स होंगे ना, कोई भी फील्ड में एक्सपर्ट्स, वो कुछ क्वालिटीज खोजते हैं। वो क्वालिटी आपके अंदर है तो वो आपको साथ रखेगी। कैसी क्वालिटीज? देख लो, अब आपको करना क्या है जब आप एक्सपर्ट्स के साथ हो? नंबर 1, आपको सुनना है। मतलब कि आप कोई भी एक एक्सपर्ट के साथ हो तो आप सुनो, सुनने के बाद वो आदमी क्या कर रहा है वो देखो और ऑब्जर्व करो, और उसी के साथ नोट्स बनाओ। एग्जाम्पल, आप उनके साथ है एक मीटिंग में और वो किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, आपको क्या करना है? बीच में बोलते रहना है? नहीं। अगर उसको आप असिस्टेंट के रूप में उसके साथ हो तो क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा उसको कि वो कैसे बोल रहा है, उसको देखना पड़ेगा वो कैसे हाथ मिलाया, कैसे मिला, क्या बात कर रहा है, कैसे बैठा, कैसे सामने वाले को ग्रीट कर रहा है। उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उससे भी बढ़ करके रिवाइज इट, वो नोट्स को शाम को रिवाइज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्लैरिफाई और डाउट्स। अब अगर वो मीटिंग के अंत पर आपको कोई क्वेश्चन और डाउट आया जो आपको समझ नहीं पड़ा कि उस आदमी ने ऐसा क्यों किया, तो पूछो उससे, और अकेले में जब पूछोगे तो आपको गाइड भी करेगा। एंड लाइकवाइज अल्टीमेटली पुट दैट नॉलेज इन एक्शन। दिस इज हाउ यू कैन बी विद एन एक्सपर्ट, और उस नॉलेज को आप चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे, राइट? सो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। कोई भी एक एक्सपर्ट है ना, कौन सी क्वालिटी खोजता है, ये देख लो, इसका फोटो ले लो। हर एक अपलाइन लीडर या एक्सपर्ट ये क्वालिटी खोजता है, और ये क्वालिटी अगर आपके अंदर होगी तो ही वो आपको अपने साथ रखेगा। यू एग्री विद दिस?
देखो, अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की भूख है, आप एनर्जी से भरे हुए हैं, कोई भी काम करने के लिए तैयार है, आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कभी कभार मजदूरी करने को भी तैयार है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं आपको अपने साथ रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कभी मेरा बैग भी उठाना पड़ेगा, बट जस्ट बिकॉज क्योंकि अपने को सीखने को मिल सकता है, हमें वो करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। और जब आप ये करोगे, थिंग्स आर गोना चेंज। फ्रेंड्स, पॉइंट बहुत सिंपल है, गुरु शिष्य परंपरा याद है आपको? बस उसी को फॉलो करो। अब आप कहोगे सर लेकिन मेरी अपलाइन में ऐसा कोई है ही नहीं, तो उसकी अपलाइन को खोजो। सर वो भी ऐसा नहीं है। अच्छा उसकी अपलाइन खोजो। सर वो भी ऐसा नहीं है, उसकी अपलाइन खोजो। एक बात बताओ, जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है ना, टीचर तो मिल ही जाता है। So, यहाँ पर बात बहुत ही सिंपल है दोस्तों। If you really want to bring a big change in the way you do business, what you need to do is कि जो एक्सपर्ट है, जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, बस उसके नेटवर्क के अंदर आना जरूरी है। Now we have learned 5 things till now. Number 1, what was that? Set your goals. Second, visualization. Third, time management. Fourth, yes, morning ritual. And number 5, proximity. आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, राइट? सो अगर ये चीजों को आप इनकॉर्पोरेट आज से करना शुरू कर देंगे अपनी लाइफ में, थिंग्स गोना बी डिफरेंट। बट यू नो, अब एक लास्ट चीज मैं आपको बोनस में शेयर करना चाहता हूँ। नाउ दैट्स नॉट देयर इन माय प्रेजेंटेशन, बट आई हैव गॉट 2 minutes, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। एंड दैट इज, फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एक्शंस लेने पड़ेंगे, बट एक्शन लेने से हमें क्या रोक रहा है? चलिए, एक्शन लेने से हमें क्या रोकता है? ओके, सेल्फ डाउट, किसी ने फियर कहा, या फियर could be the one factor, self doubt could be the other factor, okay, but you know, आज की तारीख में सबसे बड़ा फैक्टर है और वो है laziness, procrastination, for some or the other reason, you know, हम चीजों को डिले करने में इतने माहिर हो रहे हैं, और आज के इंसान का एक साइकोलॉजी नया बनते जा रहा है। पुराना इंसान जो था वो हर एक चीजें करके एंजॉय करता था। माने पहले की शादियों में आदमी 15-15 दिन तक शादी वाले घर में शामिल होकर एंजॉय करता था। डू यू एग्री? अभी शादी का इनविटेशन मिले तो कौन से 1 घंटे पे जाके जल्दी निकल जाए, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। पहले किसी की बर्थडे पे सामने से चल के वो अपने टीचर्स और गुरुओं को मिलता था। अभी बोले कितने कम लोगों से मिलूं और वो व्हाट्सएप पे विश करके खत्म कर दूं, क्योंकि आदमी वक्त के साथ इतना आलसी हो रहा है। बिलीव मी, दिस टेक्नोलॉजी हैज मेड अस टू प्रोक्रेस्टिनेट, एक्चुअली, यू नो, टू बी लेजी। बिकॉज पहले सुख पाने के लिए और कोई तरीके नहीं थे, हमेशा खुद ही कुछ करना पड़ता था, एक्शन में आना पड़ता था, तब सुख मिलता था। अभी का लाइफ बन गया है कुछ ना करके बैठे बैठे सुख मिल जाता है। कैसे? टीवी बैठे बैठे सुख, मोबाइल फोन, वेब सीरीज बैठे बैठे सुख, शाम के 2 गिलास बैठे बैठे सुख। अब जब कुछ ना करके सुख मिलने की आदत में हम आ चुके हैं, दैट्स वन रीजन वी आर नॉट टेकिंग एक्शंस। तो लास्ट में एक बोनस कॉन्सेप्ट दे दूं, जो नॉर्मली मैं अपने प्रीमियम वर्कशॉप्स में शेयर करता हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है इसे समझाने का, बट जो समझदार और अनुभवी लोग हैं वो तुरंत इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाएंगे। हम सिंपली 2 प्रिंसिपल्स पर लाइफ जीते हैं। 1, हम पेन से दूर होना चाहते हैं, कोई भी किस्म के दर्द से दूर होना चाहते हैं हमारी जिंदगी में। 2, हम अपनी लाइफ में प्लेजर चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। यस और यस? अब अगर हम पेन से दूर होना चाहते हैं और प्लेजर पाना चाहते हैं ना, तो प्रॉब्लम इज हम लोग शॉर्ट टर्म पेन पर फोकस करते हैं, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और शॉर्ट टर्म प्लेजर के ऊपर। सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। शॉर्ट टर्म प्लेजर क्या है? दारू पीना शॉर्ट टर्म प्लेजर, टीवी वेब सीरीज देख लेना शॉर्ट टर्म प्लेजर, वीडियो गेम में टाइम पास करना, मोबाइल में टाइम पास करना शॉर्ट टर्म प्लेजर। ये शॉर्ट टर्म प्लेजर ही हमारी जिंदगी के लॉन्ग टर्म पेन बन रहे हैं। अभी एक बात बताओ साला, सुबह जिम के लिए 6 बजे उठना कौन सा नुकसान है? मतलब क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है? बस इतना ही है, शॉर्ट टर्म पेन है वो। हेलो, क्या है वो?
शॉर्ट टर्म अलार्म बजे तब अपने आप को बिस्तर से खड़ा करना और बाथरूम तक लेकर जाना, बस उतना ही करना होता है। चला 10 सेकंड का काम है, उसमें भी 10 बार स्नूज करते हैं। इमेजिन दिस कि वो 10 सेकंड का पेन नहीं उठा रहे, इसीलिए शॉर्ट टर्म प्लेजर, स्नूज किया सो गए, शॉर्ट टर्म प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन दे रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म पेन उठाना शुरू कर दें, से सिटिंग हियर एंड लिसनिंग टू समवन इज आल्सो पेन, क्योंकि फ्रीडम नहीं मिल रहा ना खड़े होने का, स्ट्रेच करने का, बाहर जाने का, कुछ मोबाइल में देखने का, जो मन मर्जी है करने का, सीरियसली सुनना पड़ता है, लिखना पड़ता है सब। दैट्स अ शॉर्ट टर्म पेन, बट यू नो दैट कि आप जितने शॉर्ट टर्म पेन उठाओगे उतना ही लॉन्ग टर्म प्लेजर्स मिलेंगे। सो दैट्स ओनली द फंडा जो मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया था और 17 साल की उम्र पे शुरू किया था अपनाना। इसलिए जब तक मैं 26 साल का हुआ था तब तक याद है कितने गोल्स लिखे थे 17 साल की उम्र पे, किसी को याद है? 101 गोल्स। और जब तक मैं 26 का हुआ तब तक मैंने अपनी जिंदगी में वो 101 गोल्स को अचीव कर लिया था। बिकॉज मैं अपने आप से हर दिन एक ही क्वेश्चन पूछता था, व्हाट इज गोना गिव मी शॉर्ट टर्म पेन। बस मैं शॉर्ट टर्म पेन जानबूझ के खोजता था। आज सुबह जल्दी उठना वो भी शॉर्ट टर्म पेन ही था मेरे लिए, पर जब भी मुझे पता चलता ना शॉर्ट टर्म पेन लेना है, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। अभी जब मैं वापस जाऊंगा शाम को 4 बजे एक और शॉर्ट टर्म पेन उठाऊंगा, जिम। सो शॉर्ट टर्म पेन्स, व्हेन यू हैव शॉर्ट टर्म पेन्स यू विल हैव लॉन्ग टर्म प्लेजर्स। एंड गाइस, इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए टुडे, ज्यादा तो नहीं बट जो चीजें मैंने आपको सिखाई है बस उसके साथ, एट द एज ऑफ 17 मैंने माइनस से शुरू किया था, याद है 22 लाख का कर्जा। ओके, आई कैन से टुडे आई हैव अ नेट वर्थ ऑफ 100 CR। एक्शन लेते रहो, शॉर्ट टर्म पेन खोजते रहो, लॉन्ग टर्म प्लेजर्स मिलते जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दिस। ऑलराइट, सो एक्शन, शॉर्ट टर्म पेन, एक्शन, शॉर्ट टर्म पेन, एक्शन, शॉर्ट टर्म पेन। ऑलराइट, and that is long term results. So thank you very much. I am really honored, Stan, especially जब आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि वेलोसिटी बूस्टर का ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन सिर्फ वेलोसिटी बूस्टर के लिए नहीं बट पूरे इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहे, हेल्दी बनाए इंडिया को और वेल्दी बनाए। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।